Good afternoon. So, what we will discuss today is that we will discuss the practical aspects of GST audit, practical aspects of issues which are cropped up again and again in GST scrutiny, GST audit investigations, mostly from GST audit perspective, departmental audit perspective. What I have tried to do is I made a very comprehensive presentation of more than 250 slides. So I put in a lot of data. So in that data, wherein I have put in actual screenshots of real life notices, highlighting issues, separate notices, and I have given my legal safeguards, how to proceed with that. तो जिससे practically अपने देखे कि कैसे कैसे problem से जूझना है अपने को. You guys can come in the front. Please feel free to ask questions. Okay. आप लोग का जो questions हो, topic related, topic unrelated, we kindly do ask. We'll have a dedicated question answer also. Please move forward. So, have we actually practically dealt with any GST departmental audit? Any one of you personally? As I was talking to sir, he has dealt with his own company, GST audit under section 65. That is the GST audit where they initiate audit, they look into your books of accounts, come out with observations, then ask you to make payment voluntarily. Otherwise, they proceed with show cause notices. Have we practically dealt with any such practical GST audit? Or with any GST audit departmental team? Have they come to your office? Have they given you observation sheets? Anything like that? Okay. With none of you? Okay, sir, you've dealt with. I think they should be. He's from Kariwala. Okay. Okay. मिले हुए हैं सर आपसे तो हाँ. Okay, so focus अपना वही रहेगा, practical aspects समझे. मतलब कि today the focus is कि even though many have not practically invested in a GST departmental audit, but with the real life notices, with what the department observe, what the usual observations are, these are 80%. Whatever I will present today, 75 to 80% of GST departmental audits, you will get the same points. So I think actually it will be a real good exercise for them. That's what I'm saying. 75 to 80% of the points, hypothetically, whatever were to come in the future for your company, from exporters' point of view also, domestic point of view, these are the points which would come. In addition to this, if any specific point does come also, that also I try to put specific exporter-related points. These are few notified services for which RCM is applicable. We may be aware of goods transport agency, legal service, sponsorship, etc. Now, these are the specific topics or the points. These are the specific points or areas in your books of accounts when you are finalizing or with your books of accounts of prior years which are subject to departmental audit, that they write these points in the notice. Notice में डाल करके आपका books PL चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं और फिर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सी दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन नोटिस. इसमें क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सीइंग योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस लेजर एंड योर जीएसटीआर 2A and 3B रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, इन लोगों को एक सिक्योरिटी एजेंसी मिला है, बुलेट सिक्योरिटी सर्विसेज बोलती है. अच्छा, बुलेट सिक्योरिटी सर्विसेज नाम से ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट है, ऐसा करके नहीं, ये तो नॉन कॉर्पोरेट लग रहा है. आरसीएम का क्या प्रावधान है? कोई भी नॉन कॉर्पोरेट कि कोई भी आपका ये नॉन कॉर्पोरेट अगर सर्विस प्रोवाइडर है हु इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज रिलेटेड, कोई गार्ड को डेप्यूटेशन कर रहा है, तो इफ ही इज प्रोवाइडिंग इट टू एनी रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन, तो क्या होता है? रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन को आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, राइट, 18% का, एंड यू कैन गेट द इनपुट. तो where were we were कि बुलेट सिक्योरिटी सर्विसेज है, they found one particular party which seems to be a non corporate party. अब इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या दिख रहा है नोटिस में? अराउंड 12,96,617. इसके ऊपर सीजीएसटी एचजीएसटी है. बट सर जो ये बुलेट सिक्योरिटी सर्विसेज है, ही इज ऑलरेडी गिवन अस ये इनवॉइसेस, बट वो इनवॉइस दिया है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर, नीदर आर वी अवेयर. तो हम उनको टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर दिया 18%, बट दैट हैज बीन अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ही इज कलेक्टेड टैक्स एंड ही इज पेड इट टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया. आपको ऑडिट होता है 2 साल बाद में, बोलता है सर आरसीएम में टेबल 3.1D जीएसटीआर 3B में तो कोई टैक्स पेमेंट दिख रहा नहीं है आरसीएम का.
और ये आपका खाता में दिख गया है पीएल में कि आपने सिक्योरिटी सर्विसेज लिया है, वेयर इज द आरसीएम? सर आरसीएम क्या सर, आई हैव टू ऑलरेडी पेड, दीज आर द इनवॉइसेस, दीज इनवॉइसेस आर अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यू शुड पे अंडर रिवर्स चार्ज। 2 साल निकल गया है, अब आपका जो टैक्स पेमेंट किया गया है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास चला गया है और इनवॉइसेस भी अमेंड होंगे नहीं, 2 साल निकल गया। व्हेन इज द लास्ट डे टू अमेंड एनी इनवॉइस? इट इज द नेक्स्ट ईयर 30th of November, राइट? तो ये तो 2 साल बाद में हो रहा है, तो अब क्या होगा इसमें? दे विल इंसिस्ट ऑन अस कि यू मेक द पेमेंट अगेन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और उसके ऊपर में इनपुट भी आपको मिलने में डिस्प्यूट होगा, तो ट्रिपल वामी हो गया, डबल वामी भी नहीं। पहले तो पेमेंट किए, वो ले गया गवर्नमेंट के पास, पेमेंट कर दी, उसके बाद में डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 18% आरसीएम में पेमेंट करिए, और इनपुट भी अपने को मुश्किल क्या होता है, बिकॉज ये नोटिस जो भी इशू करते हैं, ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं अंडर सेक्शन 74 व्हिच इज फ्रॉड केसेस। नॉन फ्रॉड केसेस में अपने कोई भी टैक्स पेमेंट करके इनपुट क्लेम कर सकते हैं, बट फॉर फ्रॉड रिलेटेड केसेस देयर इज अ ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन, यार अवे गाड़ी का नहीं ले सकते, रिपेयर करता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, उसके अंदर में क्लॉज आई है, उसमें बोलते हैं एनी टैक्स पेमेंट इन दी प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 74 नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है, जब बुक्स फाइनलाइज कर रही है, जब अपना इंटरनल ऑडिट कर रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी ऑल द आरसीएम प्रोविजंस, कि सामने वाला का गलती उसके लिए कुछ नहीं होगा, उसका जो होगा होगा, लेकिन मेरे को डबल ट्रिपल बार मेरे को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अब इसमें भी आप देखिए नेक्स्ट नोटिस, इसमें एक और नोटिस है, ये सब देखिए, सब जो पार्टीज है कहां पर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है? नो, दीज आर ऑल नॉन कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भेज रहे हैं, आइडिया नहीं है उनको, हम पेमेंट कर रहे हैं, बाद में ऑडिट में निकल करके वी हैव टू मेक पेमेंट। तो सिक्योरिटी सर्विसेज का एज वी ऑलरेडी मेंशन्ड कि सप्लायर ऑफ सर्विस आपका जो होगा नॉन कॉर्पोरेट, कैन बी इंडिविजुअल पार्टनरशिप, जो हम हैं मतलब जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और 18% आपका आरसीएम में रहेगा। अच्छा, सेकंड देखिए लीगल सर्विसेज, आपका पीएल बैलेंस शीट में डेबिट साइड में पीएल में खर्चा आएगा लीगल सर्विसेज, एडवोकेट को पेमेंट की है, कुछ भी चीज है। अब सर एडवोकेट का रूल क्या है? एनी लीगल सर्विसेज व्हिच हैव बीन रिसीव्ड बाय एनी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, अगर वो लीगल सर्विस है तो मेरे को आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? और मैं इनपुट क्लेम कर सकता हूँ। लीगल सर्विस का मतलब, जैसे कि यहाँ पर देखिए सुकुमार दास, नाम से समझ में आ रहा है आपको कि लॉयर है, एडवोकेट है? नहीं। एस जलान एंड कंपनी, समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन ये तो आपका लेजर जो पीएल में है, वो तो लीगल सर्विसेज के अंदर जाके दिखे है ना, वो तो उनको पता ही एडवोकेट है, फिर मांगेंगे इनवॉइसेस होगा उसमें आरसीएम रिलेटेड, वो तो लॉयर्स लोग तो जीएसटी में रजिस्टर भी नहीं करते हैं, बिकॉज वो सब जो इनवॉइसेस इशू करते हैं दे आर अंडर आरसीएम, सो दे आर नॉट बाउंड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। मेरे को आरसीएम में पेमेंट करना है, राइट? तो अब जब उसके बाद में अब ये रूल क्या बोलता है आपका, एनी बिजनेस एंटिटी, कोई भी अगर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट से अगर अपने सर्विस लीगल सर्विस ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल सर्विस का परिभाषा क्या है? एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन, कोई भी एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। अब मानिए कोई भी ऐसा आदमी है, बोलता अच्छा लॉयर, इसका मतलब कि कोर्ट का पेशी किया होगा, रिप्रेजेंटेशन सर्विस, उसी का बिल के ऊपर में आरसीएम पेमेंट करना है? नो, इट इज इंक्लूडिंग, इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो लॉयर का कोई भी सर्विस है विच इज लीगल सर्विस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन, नॉट लिमिटेड टू डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन, इफ ही इज गिविंग एनी एडवाइस, कंसल्टेंसी सर्विस और एनीथिंग, उसके ऊपर में आपको आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अब कोई लॉयर है फॉर एग्जांपल जो आईटीआर फाइल्स करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उसमें लीगल का तो कुछ है नहीं, तो नॉन लीगल सर्विस है, इसके ऊपर में आपको आरसीएम पेमेंट करना है क्या नहीं करना है? ये तो डिस्प्यूटेड चीज हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो अकाउंटिंग है, 2 साल बाद में वो बोलेंगे सर ये तो लॉयर है, आपके डिपार्टमेंटल ऑफिसर, आप पेमेंट क्यों नहीं किए? लीगल हो नॉन लीगल है मेरे को पता नहीं। तो इट इज योर सेफगार्ड, आप इसको पेमेंट करके भी चल सकते हैं, डिस्प्यूट करना तभी भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ओपिनियन ये लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइलिंग ऑफ टैक्स सर्विसेज, दे आर नॉट पर से लीगल सर्विस, बट ये एक इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है कि दीज फॉल अंडर असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। तो ये ऑफिसर बाद में आकर के बोल सकते हैं सर इसके ऊपर तो आरसीएम आप पेमेंट नहीं किए। तो एनी सर्विसेज व्हिच हैव बीन रिसीव्ड बाय एनी लॉयर, लीगल मान करके आरसीएम पेमेंट करिए उसके ऊपर। अब व्हाट इज दिस डायरेक्टर सिटिंग फीस? वी नो अबाउट डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर में क्या पता है अपने को? डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे अपने को क्या पता है? ये देखिए, कोई भी अगर डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हैं अपने, तो सैलरी अगर डायरेक्टर को देते हैं एज एन एम्प्लॉई, तो उसमें अपने टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 192।
राइट? 7.5 लाख रुपया से ऊपर होता, अब तो 12 लाख रुपया हो गया। जो आपका टैक्स स्लैब जो रिबेट है उसके ऊपर में अगर जाएगा तो हम टीडीएस काटेंगे। तो 192 में अगर टीडीएस काट रहे, एम्प्लॉय रिलेशन है, तो दिस इज नॉट अ जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ये शेड्यूल 3 में आपका कैटेगरिकली नॉन जीएसटी सप्लाई है। लेकिन कोई भी अगर डायरेक्टर है कंपनी को, कोई भी अदर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, जैसे मानिए डायरेक्टर सीए भी है, सीएमए भी है, सीएफए भी है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है, वो आपको कोई भी कंपनी को सर्विस दे रहा है और कंपनी उसको कोई भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसको कोई भी पैसा दे रहा है, तो उसमें टीडीएस कौन सा कटेगा? 192 कटेगा कि 194 जे कटेगा? 194 जे 10% कटेगा ना सर, 30,000 के ऊपर का वो कट गया आपका। तो फॉर्म 16A आ गया, आ गया ना? फॉर्म 16 देखेंगे, अच्छा डायरेक्टर का रेम्युनरेशन है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन 100 रुपया और पीएल में 100 रुपया डायरेक्टर रेम्युनरेशन, इसका मतलब कि पूरा ही सैलरी मिल रहा है, तो कुछ देखना नहीं है। 100 रुपया फॉर्म 16 में दिख रहा है, लेकिन खर्चा डायरेक्टर रेम्युनरेशन में 120 रुपया है। 20 रुपया क्या चीज के लिए दिए भाई? वो सिटिंग फीस दी है, कुछ और रेम्युनरेशन दी है विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ एन एम्प्लॉय। वहां पर कंपनी का आरसीएम लग जाता है, तो आरसीएम कंपनी विल हैव टू पे आरसीएम ऑफ 18% ऑन द 20 रुपीज एंड कैन क्लेम इनपुट। ये चीज देखना पड़ेगा। तो फॉर्म 16A 16 ये सब चीज लगेगा। तो ये आपका सिटिंग फीस है, सिटिंग फीस के ऊपर में भी लगता है। देखिए नोटिस है, दिस इज अ नोटिस 24,000 डायरेक्टर सिटिंग फीस है। तो दिस इज नॉट सैलरी, दिस इज इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। सो आरसीएम हैड टू बी पेड बट वाज नॉट पेड। ये क्या है? जीएसटी ऑन जीटीए। ये तो सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा डर लगता है इसमें, क्योंकि सबसे मोटा खर्चा आफ्टर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम्स टू दिस ओनली, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग, डिलीवरी चार्जेस एक्सेट्रा। सो ये सब क्या हो गया आपका? अब ये देखिए, ये आपके ये नोटिस है, नोटिस में क्या दिया? कैरेज इनवर्ड का खाता उठा लिया 58,09,000, 36,97,000, 1 crore 40 लाख मिला करके कितना हो गया? 2 crore 35,52,000। इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। ये आपका फोन है? हाँ, थोड़ा सा फोटो ले लीजिएगा ना बीच में। हाँ, इसमें आपका ये अब इसमें कितना आपका आ गया? 2 crore 35,52,000 आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने आरसीएम कितना पेमेंट किया? टेबल 3.1D में आपने पेमेंट किया 1 crore 71,98,000 पे। तो डिफरेंस कितना हो गया टैक्सेबल वैल्यू का? 63,53,000। तो ये बोलती है भाई 63 लाख रुपया के ऊपर में 5% आरसीएम तो पेमेंट ही नहीं की है। ये तो एडॉक उठा लिया ना आपका पीएल से। अब आपका क्या दायित्व है सर? आपका दायित्व है ये चीज का रिकॉन्सिलिएशन देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिकॉन्सिलिएशन है सर? जीटीए माने ये मतलब तो नहीं हुआ ना जीटीए से अगर हम जो सर्विस ले रहे हैं सब आरसीएम के तहत आता है? नहीं, जीटीए तो लास्ट 2 साल में फॉरवर्ड चार्ज भी स्टार्ट हो गया। फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या हो गया सर? एनेक्सर 5 जीटीए फाइल करेगा 15 मार्च, मतलब कि 2025-26 के लिए 15 मार्च 2025 में जीएसटी पोर्टल में एनेक्सर 5 बोल करके फाइल करेगा। ये क्या है? ये एनेक्सर 5 है, ये एनेक्सर 5 है। ये क्या बोलता है? बोलता है सर आरसीएम कुछ नहीं सर, हम फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करेंगे पूरा साल 25-26। और फॉरवर्ड चार्ज में भी सर 2 ठो अपॉर्चुनिटी है। फॉरवर्ड चार्ज में भी क्या है? जीटीए अगर बोलता है कि सर मेरे को इनपुट मेरे को क्लेम नहीं करना है, मेरा रेंट है, गाड़ी भाड़ा है, ये सब मेरे को क्लेम नहीं करना है, तो 5% मैं फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करूंगा। फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज किया, सामने वाला जो पार्टी है 5% नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में इनपुट क्लेम कर दिया। जीटीए बोलता है नहीं सर मेरा इनपुट बहुत भारी है, रेंटल है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, और रेंट लेता हूँ, मतलब कि ऑन हायर लेता हूँ मैं गाड़ी का, उसका मेरा खर्चा लगता है टैक्स का, तो मैं इनपुट लूंगा। तो 12% फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए अपना इनपुट क्लेम करेगा, बट ही विल चार्ज 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो वो अगर वो करेगा तो एक तो क्या होएगा? एक एनेक्सर 5 आपको चेक करना होगा, ये आपके पास में नहीं आएगा, ये फाइल होता है, जीटीए फाइल करता है। बट व्हाट कैन यू चेक सर? यू कैन चेक एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 क्या है सर? ये डिक्लेरेशन। हाउ मेनी पीपल नो कि जितना जीटीए जो एनेक्सर 5 में फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किए पूरे साल में, उनको एनेक्सर 3 का डिक्लेरेशन देना है हर इनवॉइस में। एनेक्सर डी में क्या लिखा हुआ? 2 लाइन एनेक्सर 3 में कि सर हम फॉरवर्ड चार्ज करेंगे, काम खत्म। ये अगर नहीं मेंशन किया हुआ आपके, आप बोलिए बिल्टी इनवॉइस, बिल्टी कम इनवॉइस की इनवॉइस में, तो ये गलत है, और वो फॉरवर्ड चार्ज कर रही है, तो ये प्रॉब्लम होगा इनपुट के लिए, आपके लिए। तो बोलने का मतलब क्या है सर? आरसीएम तो कट गया ना सर। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में जो खर्चा आपका है, ये इसमें तो कोई बाइफर्केशन नहीं है ना कि ये फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, क्या? वो तो उठा करके बैलेंस पीएल से आपका पूरा डाल दिए। हो सकता है 30% इसमें से आपका फॉरवर्ड चार्ज का खर्चा हो। तो अगर फॉरवर्ड चार्ज का खर्चा है, उसके ऊपर में आरसीएम पेमेंट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, तो वो तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, कितने जन लोग को ये पता है कि सर डिफरेंस होता है
जो ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड ऑफ एनी गुड्स, वो एग्जेम्प्ट है अंडर जीएसटी। कितने जन लोगों को पता है? बहुत जन लोगों को नहीं पता है। इससे क्या होता है सर कि अगर जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, नॉर्मल लोकल ट्रांसपोर्ट इंडिविजुअल ट्रक है, वो आपको कंसाइनमेंट नोट नहीं देता, बिल्टी नहीं देता है, सिर्फ कच्चा का आपको डिलीवरी चलान, रोड चलान देता है। उसके ऊपर में आपको आरसीएम पेमेंट करना है कि नहीं करना है? एज पर लॉ नहीं करना है। लेकिन कितने जन लोग करके बैठते हैं, पता ही नहीं है। पेमेंट कर दिया, बोलते हैं सर क्या है, पेमेंट कर देते हैं, क्लेम कर दिया इंपोर्ट का, रेवेन्यू न्यूट्रल है। लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें भी इन लोग क्वेरीज रेस करते हैं। बोलने का क्या मतलब है, ये चीज ध्यान रखिए। एंट्री नंबर 18 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017 मास्टर एग्जामिशन नोटिफिकेशन सीजीएसटी रेट का 18 नंबर जो आपका सीरियल नंबर है, वो बोलता है क्या है, सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड इज एग्जेम्प्ट अपार्ट फ्रॉम 2 केसेस, जीटीए एंड कोरियर। जीटीए का परिभाषा क्या हो गया, ट्रक ट्रक है, व्हीकल नंबर है, आरसी आरसी है। क्या सिर्फ एक डिफरेंस है, कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है सर, जीएसटी में परिभाषा नहीं है। कंसाइनमेंट नोट का परिभाषा इसमें मैं डाला हूं ढूंढ करके दूसरे लॉ से। इसमें क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट नोट कस्टडी, मैं रिसीट करता हूं आपका गुड्स, मैं आपको कस्टडी के लिए एक ठो कंसाइनमेंट नोट, रिसीट नोट, बिल्टी आपको दिया हूं, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। अगर वो कंसाइनमेंट नोट दिया हुआ है तो इसका मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपने सर्विस दिया है। फिर सेकंड चीज आता है, वो फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज कर रही है कि रिवर्स चार्ज में कर रही है। अगर रिवर्स चार्ज में कर रही है तो रिवर्स चार्ज मतलब कि क्या, वो टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं करेंगे, आपको पेमेंट करना, तब जाकर के आप अगर नहीं किए तब आप फंसेंगे। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो टोटल उठाया है, जो अमाउंट है 2,35,52,000, इसमें पूरा के ऊपर आरसीएम लगेगा क्या? नहीं, फॉरवर्ड चार्ज का एलिमेंट है, लोकल ट्रांसपोर्ट का एलिमेंट है, हो सकता है कोई कोई इसमें आपका एग्जेम्प्ट भी हो। तो वी हैव टू डू अ रिकॉन्सिलिएशन ब्रेकअप। ऐसे नहीं कि अंधाधुन जो बोले हम लोग वी मेक द पेमेंट, बट वेरी फ्यू पीपल दे नो दिस। अच्छा, यहां पर देखिए, कोई भी अगर आप इंडिविजुअल हो और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, बड़ा बाजार में आपका दुकान है, फॉर एग्जांपल 20 लाख के नीचे का आपका या 40 लाख के नीचे का आपका गुड्स का है, कुछ भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी अगर आप लिए, तभी भी आपको कोई भी उसमें आरसीएम का पेमेंट करने का दरकार नहीं है, बिकॉज आपका यहां पर आरसीएम नॉट एप्लीकेबल में लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हु आर अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, उसमें आरसीएम लगेगा नहीं। सेकंड क्या केस इसमें दिया हुआ है, फॉरवर्ड चार्ज, जो मैंने बोला है, अगला फॉरवर्ड चार्ज में मेरे से टैक्स पेमेंट कर रहा है तो मैं वापस से थोड़ी गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा, राइट? और ट्रांसपोर्ट बाय रोड विच इज नॉट अ जीटीए। जो अपनी सिक्योरिटी वाला का एग्जांपल हाँ है जी, जहाँ पे फॉरवर्ड में लिया है, हाँ जी, और वहाँ पे आरसीएम भी सर बहुत प्रॉब्लम है। अब ये सर जो बोल रहे हैं, आप ये सोचिए, मैं आपको यही खाता दिखाता हूं, ये बहुत अच्छा पॉइंट सर ये रेस किए। इसमें कितना पार्टी दिख रहा है सर? 7 पार्टी दिख रहा है। हर लेजर का 10-10, 12-12 हजार रुपया महीना का भी गार्ड का, अगर एक गार्ड का देते हैं तो साल का कितना खर्चा हो गया आपका? 20-25 लाख। 20-25 लाख के ऊपर में अगला 18% लिया है, कितना 2-2.5 लाख रुपया हो गया। 2-2.5 लाख रुपया मेरे से एक लेजर का लिया है, 7 लेजर करके 12-13 लाख हो गया। 12-13 लाख जेब से ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट किया हूं मैं, रिवर्स चार्ज में नहीं किया हूं, क्योंकि उसका इनवॉइस ही गलत है और मैं भी, मेरे को भी आइडिया नहीं है, मेरा कंसल्टेंट भी मेरे को हेल्प नहीं किया। 2 साल बाद में बोलती है 12 लाख रुपया कहाँ है आरसीएम का? मैंने बोला 12 लाख रुपया तो पेमेंट कर दिए। अब इसमें सर बोल रहे हैं कि लीगल रेमेडी क्या है, क्योंकि आपका 30 नवंबर तो निकल गया, अमेंड तो कर नहीं सकता है ना। अगर मानिए बीच में निकलता, टैक्स ऑडिट के टाइम में अभी अगर ये पॉइंट निकलता, तो आप क्या बोलते कि सर 30 नवंबर के पहले आप अपना गार्ड वाले को बोलिए कि जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करेंगे, आरसीएम के जितने भी टेबल 4B में फॉरवर्ड चार्ज के इनवॉइसेस है 4A में, उसको 4B में आरसीएम के इनवॉइसेस अमेंड करेंगे, मेरे 2B में आएगा आरसीएम में, दीज आर एप्लीकेबल अंडर आरसीएम। फिर मैं जेब से पेमेंट करूंगा और जितना पैसा उनको पेमेंट किया हूं मैं, उतना वो अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को जो पेमेंट किए है वो उतना अमाउंट वो एडजस्ट करेंगे अपने जीएसटीआर 3B में, बिकॉज ही इज ऑलरेडी मेड दो सेल्स। सो फर्दर सेल्स में ही इज ऑलरेडी मेड दोस पेमेंट्स, वो अपने एडजस्ट करेंगे अपना। तो ही विल एडजस्ट जीएसटीआर 1 अमेंड करके आई विल बी एबल टू सी दोज आरसीएम इनवॉइसेस इन माय जीएसटीआर 2B, मैं पेमेंट करूंगा और फिर इनपुट क्लेम करूंगा। ये सब कहानी होना कब तक? 30 नवंबर के अंदर। सर बोल रहे 30 नवंबर चला गया, सर 30 नवंबर के अगले साल का भी 30 नवंबर चला गया, उसके अगले साल का भी चला गया, 3 साल निकल गया ऑडिट, अभी वो हम क्या करें? 12-13 लाख उधर, 12-13 लाख इधर मांग रहे और इनपुट भी नहीं मिलेगा, क्या करें हम सर? उसमें 12 लाख रुपया जो उनका गया है, उनको आप बोलिए सर 12 लाख जो गया है आप रिफंड क्लेम करिए उसके लिए। एनी अमाउंट विच इज पेड विच इज नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट टैक्स।
So he has made an advance amount to the GST department which does not hold the character of tax. टैक्स का है, कहां लिखा ये टैक्स है? तो टैक्स ही नहीं है, ये तो गलती से एक्स्ट्रा अमाउंट चला गया. तो RFD 01 में रिफंड एप्लीकेशन एनी अदर रीजन की एक्सेस पेमेंट और कैश में आप अप्लाई करिए, आपको उसमें मिलेगा. वो कब से करना है? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकरेक्ट पेमेंट. वो रिफंड करेंगे, वो आपको रिटर्न करेंगे, ऐसे जेब से तो करेंगे नहीं. दूसरा आप बोले ना ऑडिट 3 साल के बाद 3 साल बाद में, चलिए वो आपका टाइम बार हो गया, वो पैसा गया आपका. एटलीस्ट आप अभी क्या कर सकते हो, पैसा गया, चलिए. अब आप दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, आप अभी तो पेमेंट करना ही होगा आपको, ये इसमें कोई भी राहत नहीं है. आप पेमेंट किया, अब आप क्या बोलेंगे, सर इसका एटलीस्ट इनपुट तो मिले मेरे को. एक बार मार पड़ा, चलिए उसके साथ में हाफ 50-50% हम लोग सेटल करेंगे, जो भी चीज है कि वो करेंट बिल में सेटल करेंगे, जो भी है. करंट ईयर में जब मेरा ऑडिट खुला है तो 74 सेक्शन 74 73 पता है ना अपने को, 73 नॉन फ्रॉड, 74 फ्रॉड केसेस. ऑडिट खुलता आंख बंद करके फ्रॉड, आपने फ्रॉड किया है. क्यों फ्रॉड किया है? क्योंकि हम अगर ऑडिट नहीं करते तो ये सब चीज निकलता नहीं. तो वो शोकॉज इशू करेंगे, प्रोसीडिंग्स करेंगे 74 में. लेकिन जब आप पेमेंट कर रहे हो तब आप करोगे DRC 03 में जो पेमेंट करोगे आप 73 में करिए, वॉलंटरी पेमेंट 73.5 में. कल जाकर के अगर इसका ऑडिट खुलेगा, पेमेंट तो 3 साल बाद का कर रही है ना, 3 साल बाद में, तो वो साल में जो पेमेंट कर रही है, इनपुट क्लेम किए है, तो इनपुट बढ़ा हुआ है, 2B में आया हुआ नहीं है, तो उसका जब ऑडिट होगा 2-3 साल बाद में, तो बोलेंगे कि ये तो 2B में आया नहीं है, क्या चीज का? बोले सर ये तो हम डिपार्टमेंटल ऑडिट के टाइम में पेमेंट किए तो उसका क्लेम किए. डिस्प्यूट होएगा. लेकिन डिस्प्यूट 100% होएगा अगर 74 में आप अगर पेमेंट करिए DRC 03 में. दूसरा चीज है कंटेस्ट द नोटिस. कंटेस्ट द नोटिस 74 का जो शोकॉज नोटिस आया है उसको कंटेस्ट करिए अंडर सेक्शन 75. उसको बोलिए कि सर ये फ्रॉड का है ही नहीं, ये आपका नॉन फ्रॉड केस का है. मोटा मोटी जीत जाते हैं इसको, ऑर्डर भी निकल के अपील करके, जिससे कि फ्यूचर में एटलीस्ट आपका जो इनपुट आप क्लेम किए, जो पेमेंट करके, वो सिक्योर हो. ये एक्चुअल में हुआ है. जो सर बोल रही है इज प्रैक्टिकली नोन टू दिस. इतना मामूली छोटा सा चीज है, 12-13 लाख रुपया पेमेंट किया, वो वापस से पेमेंट इनपुट भी नहीं मिलेगा. सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. अच्छा, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का आपने देखे, उसके बाद में ये देखिए, दीज आर बिल्टीज. ये कंसाइनमेंट नोट से, कंसाइनमेंट नोट नंबर दिया जाता है इसमें. यही नंबर दिखाया जाता है अपना कहां पर, वे बिल में, इनवॉइस में भी व्हीकल नंबर दिया जाता है इसमें. कंसाइनर कंसाइनी का एड्रेस डिटेल दिया जाता है, क्या माल है वो जाता है. तो ये आपके पास में होना चाहिए. अच्छा, ये स्लाइड के पहले ही आने से पहले ही सर पूछ लिए क्या चीज, पहला वाला क्वेरी जो था, GST पेड टू सप्लायर इंस्टेड ऑफ पेइंग अंडर RCM. तो अभी डिस्कस कर लिए अपने. अमेंडमेंट अगर हो सकता है करिए, नहीं तो ये चीज करिए. दूसरा क्या है, RCM पेड बट पेमेंट नॉट मेड टू सप्लायर. अच्छा, 180 दिन वाला रूल पता है अपने को सबको. कोई भी सर्विस अगर अपने लिए, इनवॉइस का डेट से विद इन 180 days वी नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई प्लस द GST अमाउंट ऑन दैट टू द सप्लायर. अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होएगा, आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा टेम्पोरेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्पोरेरीली. कब करना होगा? 6 महीने के जस्ट बाद में. और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, वेन एवर यू मेक द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई प्लस द GST अमाउंट, तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम लिमिट. ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है. टाइम लिमिट क्या है? 30 नवंबर. 10 साल बाद में भी मैं पेमेंट करता हूं, क्लेम कर सकता हूं. यस, बिकॉज ये रीअवेलमेंट वाला केस है. रूल 37 सब रूल 4 रेड विद सेक्शन 41 सब सेक्शन 2. ये जो मैं जो आपको बोला, रीअवेलमेंट का कोई एक्सपायरी नहीं है. तो ये वाला केस में क्या है, RCM के केस में कोई भी मैं पेमेंट ही नहीं किया, 10 साल हो गया पेमेंट नहीं किया, लेकिन वो उसमें आता ही नहीं है. मैं तो जेब से पेमेंट किया हूं और क्लेम किया हूं. मैं सप्लायर को पेमेंट करूं नहीं करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. बैड डेथ कर लो. रूल 37 तो जो रूल 36 सब रूल 4 है एक्सेट्रा, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, उसमें आपका 180 डेज का जो है RCM के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि RCM का तो मैं खुद से जेब से पेमेंट करके क्लेम कर रहा हूं. क्या है, फॉरेक्स एक्सपेंसेस अपने आएंगे इंपोर्ट और सर्विस में. वी विल टॉक अबाउट दिस. रिलेटेड पार्टी भी डिस्कस करेंगे अपने. अच्छा, RCM पेड अंडर रॉन्ग हेड रॉन्ग टेबल. तो RCM अगर रॉन्ग टेबल रॉन्ग हेड में अगर पेमेंट करे तो क्या होएगा, अमेंड कर सकते हैं अपने. लेकिन हम अगर रॉन्ग हेड में RCM अगर पेमेंट किए, उसका भी नोटिस है, वो भी अपने अभी इसके जस्ट बाद में सबका नोटिस है, एक एक पॉइंट का नोटिस है इसमें. जो चीज इसमें नॉन जनरेशन ऑफ सेल्फ टैक्स, ये सेल्फ टैक्स इनवॉइस, सेल्फ टैक्स अपने, ये सेल्फ इनवॉइस पता अपने को क्या है? व्हाट इज सेल्फ इनवॉइस? कोई भी अनरजिस्टर्ड पार्टी, अनरजिस्टर्ड GTA से अगर सर्विस लेते हैं, अनरजिस्टर्ड लॉयर से लेते हैं, अनरजिस्टर्ड कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस लेते हैं एक्सेट्रा, अनरजिस्टर्ड पार्टी है GST में. सो what is the basis, what is the invoice on which I have to claim input under section 31 under rule 46.
वो तो इनवॉइस ही होता है ना, इनवॉइस तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि वो तो आपको इनवॉइस दे ही नहीं रहा है ना, वो तो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, वो इनवॉइस कहां से जीएसटी टैक्स इनवॉइस दे सकता है? तो खुद के लेटर हेड में अपने खुद सेल्फ इनवॉइस बनाते हैं, उसका सीरियल नंबर होता है, उसका मैं वो भी है अपने दिखाते हैं उसमें। अब उसका टाइम लिमिट भी हो गया, वी नीड टू इशू अ सेल्फ इनवॉइस विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ द सर्विस। पहले कोई टाइम लिमिट नहीं था, वो भी देखेंगे अपने अभी। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मेरे को एक और चीज बताइए, नॉर्मल गाड़ी भाड़ा का तो है ही सर्विस, ट्रांसशिपमेंट का है, टेम्पररी वेयर हाउसिंग का है, लोडिंग अनलोडिंग है, वो गाड़ी वाला ही करता है, तो उसके लिए अलग बिल रेज करता है कि सेम बिल में डालता है? सेम बिल में डालता है। उस पर आरसीएम पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, उसका क्लैरिफिकेशन आया। अगर ये नहीं करेंगे आप जो उसमें, तो उसके ऊपर बाद में आपके पीछे पड़ेगा। और अगर दूसरा इनवॉइस रेज करके करते हैं, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू दिस ट्रांजैक्शन, तब वो अलग है, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। लेकिन अगर सेम इनवॉइस में आपका, तो प्रिंसिपल सप्लाई इज आरसीएम, ये सब एंसिलरी सप्लाई दे टेक द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। अच्छा, ये देखिए, ये आप लोग के लिए, एक्सपोर्टर्स लोग के लिए, फॉरेन बैंक चार्जेस। कितना बार ऐसा होता है सर, हम लोग कितने एक्सपोर्टर लोग हैं बाहर में, हम लोग माल सप्लाई करते हैं, पेमेंट आता है हमारा फॉरेन रिसीवेबल, पैसा काट के आता है, इंटरमीडियरी बैंक पैसा काट लिया, जेपी मॉर्गन काट लिया, कि कोई मेरा ही बैंक अकाउंट वहां पर जो मेरा बैंक है वो काट लिया। काटने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएसटी ऑडिट के टाइम में अगर हम उसको अच्छा तरीके से अकाउंटिंग करके, मेरा ही गलती है कि मैंने इतना अच्छा से अकाउंटिंग किया कि अलग हेड बना लिया कि फॉरेन बैंक चार्जेस, और उसमें मैं कोई अमाउंट डाल दिया हूं जो फॉरेक्स में कटा है मेरा। उसके बाद में वो देखते हैं, अच्छा ये फॉरेन बैंक चार्जेस है, तो आपका इंपोर्ट और सर्विस है। इंपोर्ट और सर्विस का डेफिनेशन क्या है कि द सप्लायर बैंक इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इज इन इंडिया। तो उसमें बोलते हैं सर इस पे आरसीएम कहां है, आरसीएम दीजिए। अरे भाई, पैसा भी कटा, आरसीएम भी मांग रहे हो, किसके दिमाग में आता है कि फॉरेन बैंक चार्जेस इंपोर्ट और सर्विस होगा, आरसीएम पेमेंट करना है? लेकिन बड़ा अमाउंट है सर, ये नोटिस है, दिस इज अ नोटिस। ये कितना बड़ा अमाउंट है सर, ये सोचिए कितना पैसा काटा है मेरा बैंक। 17,62,410 रुपया तो काटा है सिर्फ सर्विस के लिए। उसके ऊपर में जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है आरसीएम दीजिए 3.25 लाख रुपया, और उसके ऊपर में इनपुट भी नहीं मिलेगा आपको। तो फॉरेन बैंक ने हमारे को तो सर्विस दिया ही नहीं इसकी। एग्जैक्टली। अब जैसे फॉरेन बैंक जो है, जो इंटरमीडियरी बैंक है, जो ये पैसा काटता है एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, उसमें हमारा बैंक अकाउंट है क्या? नहीं है, नहीं है हमारा बैंक अकाउंट। अच्छा, पहला एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट है किसी में, तो बैंक अकाउंट है, तो इस पे हम लोग लीगली हम लोग इसको बाईपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये प्लेस और सप्लाई का रूल। अच्छा, इंपोर्ट और सर्विस होने के लिए 3 कंडीशन है, 2 को हिला नहीं सकते। एक, मैं इंडिया में हूं, बैंक बाहर में, इसको कैसे हिलाएंगे? एक चीज को हिला सकते हैं, प्लेस और सप्लाई इंडिया से बाहर दिखा सकते हैं कि प्लेस और सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस और सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया अगर मैं प्रूफ कर लूं तो इंपोर्ट और सर्विस है ही नहीं, तो आरसीएम लगेगा ही नहीं। तो प्लेस और सप्लाई अगर इंडिया से बाहर में है, तो उसके लिए मेरे को क्या प्रूफ करना होगा कि मेरा जो सेक्शन 13 है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है, व्हेन सप्लायर, ईदर सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, एक इंडिया में एक इंडिया के बाहर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट डिटरमाइन करता है, ये लॉ है। उसमें क्या बोलता है, सेक्शन 13 जो आपका है, उसमें स्पेसिफिक सेक्शन 8 है, उसमें एक तो देखिए लिखा हुआ है, सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी टू अकाउंट होल्डर्स। उसके लिए आपका डिफॉल्ट प्रोविजन नहीं है। डिफॉल्ट प्रोविजन, कैन एनीवन टेल मी प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या है? इज द लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट, जो डिफॉल्ट प्रोविजन है, कि अगर ये सब अलग अलग क्लॉजेस में नहीं आए तो डिफॉल्ट प्रोविजन है। तो प्लेस ऑफ रिसिपिएंट कौन है? मैं हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा का इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है, मेरे को इंडिया के बाहर लेके जाना है। तो इसमें स्पेसिफिकली क्लॉज 8 में दिया हुआ है क्या, कि अगर कोई भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विस है, किसको? कोई मेरे को, जिसमें मेरा बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट मतलब बैंक में, तो वो बैंकिंग सर्विस बिकम्स द लोकेशन ऑफ द बैंक। अब लोकेशन ऑफ बैंक हो गया इंडिया के बाहर, तो इंडिया के बाहर लोकेशन ऑफ बैंक हो गया, तो क्या हो गया? इंपोर्ट और सर्विस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इंपोर्ट और सर्विस के लिए तो सर कंडीशन है ना, मैम अभी बोला, ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, ये लिखा हुआ है कि 3 कंडीशन होना चाहिए। मैं इंडिया में सर्विस रिसिपिएंट, सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया, और जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। अरे तभी तो इंपोर्ट होएगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में होएगा, तभी तो इंपोर्ट मानेंगे अपने। मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को लॉ लगा करके इंडिया के बाहर कर दिया कि इट इज द लोकेशन ऑफ द बैंक आउटसाइड, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं, जैसे सर बोले इंटरमीडियरी बैंक काट लिया, क्या करेंगे सर उसमें? उसमें आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए कि पेमेंट करना,
आप पेमेंट करिए, पेमेंट करके इनपुट क्लेम करिए, ये तो आरसीएम का चीज है। लेकिन डिपार्टमेंटल ऑडिट में अगर निकला, अगर पेमेंट करना पड़ ही रहा है आपको, पेमेंट करिए और जो पेमेंट करिए 73(5) में करिए, इनपुट क्लेम करिए उसका। और नोटिस अगर आता है आपका तो उसको चैलेंज करिए कि 74 का नहीं 73 का। व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस इज वेरी हिडन। किसको पता है ये फॉरेन बैंक चार्जेस में आरसीएम डाल करके 3-3, 4-4 लाख रुपया ले रही है, लेकिन ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। अच्छा, ये आपका नोटिफिकेशन 10 है जहां से इन लोग उठाते हैं ये इंपोर्ट और सर्विस के लिए, आरसीएम के लिए। ये क्या बोलते हैं, पहला वाला कि कैटेगरी ऑफ सर्विस, कोई भी आदमी इंडिया के बाहर में बैठा हुआ वो सर्विस दे रहा हो और इंडिया के अंदर में कोई भी आदमी को दे रहा हो। अच्छा, ये दूसरा केस है सर, आपका मानिए कि सर का मिनरल्स है, बाहर जाता है इंडिया के। अब मानिए कि सर कुछ इंपोर्ट कर रही है बाहर से, इंपोर्ट कर रही है तो कुछ सर्टिफिकेशन होएगा ना वहां पर, कि एक्सपोर्ट भी अगर हम करेंगे तो कुछ सर्टिफिकेशन तो होएगा वहां पर। तो सर्टिफिकेशन होता है बीएसआई एश्योरेंस यूके लिमिटेड से, वहां पर मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन सर्विस होता है। पेमेंट कहां से होएगा, फॉरेक्स में करेंगे। जैसे फॉरेक्स में पेमेंट किए, पीएल में आया हुआ है, बोलेंगे इंपोर्ट और सर्विस। ऑब्वियसली ना, कुछ पेमेंट कर रही है तो कुछ सर्विस ली है, तभी तो इंपोर्ट और सर्विस आरसीएम, ये इनका लिंकिंग है। तो अपने को ये समझना है सर, ये लिंकिंग को तोड़ना कैसे अपने को। तो ये केस में अगर कोई भी मेरा अगर सर्टिफिकेशन चार्जेस फॉरेक्स में मैं दे रहा हूं, इसका भी तोड़ है। अगर वो सर्टिफिकेशन मेरा गुड्स को अगर मैं इंडिया के बाहर में भेज करके करा रहा हूं, मानिए कोई भी गुड्स है मेरा, उसके ऊपर में सैंपलिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस कुछ भी होगा तो इंडिया के बाहर में ही होएगा ना। अगर गुड्स इंडिया के बाहर में जा करके उसको टेस्टिंग हो रहा है, वो वहीं से बिक रहा है, कि इंपोर्ट में आने से पहले वहां पर टेस्टिंग हो रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं, मेरे पास आकर के, तो बाहर में हो रहा है, गुड्स बाहर में है, आपका गुड्स बाहर में है, टेस्टिंग उसके ऊपर हो रहा है। तो इसमें क्या तोड़ है सर, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 इलीगल तोड़ है, इलीगल तोड़ है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इसमें, डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट क्या था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट तो मैं हूं, मैं तो पेमेंट कर रहा हूं, तो इंडिया हो जाएगा, इंपोर्ट और सर्विस हो जाएगा। मैं तोड़ूंगा इसको, कैसे तोड़ूंगा, मैं बोलूंगा सर ये तो गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एंड द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। इसमें क्या है, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन यूएस, इन यूएई। तो द लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूएस यूएई। तो इंपोर्ट मेरा कैसे हुआ सर्विस, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, टूट गया ये। लेकिन काफी केसेस ऐसा होता है कि फॉरेक्स में पेमेंट किया, बिलिंग बाहर का हुआ, माल इधर में आकर के सर्वे हुआ है और वहां पर सर्वे में एनेक्शन में भी लोकेशन इंडिया का ही दिखा रहे हैं। उसमें क्या होएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा, फंस जाएंगे सर। पेमेंट करिए आज से, स्ट्रक्चरिंग करके सोचिए सर, आपको आपका खोलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको डेबिट साइड खोलना पड़ेगा आपको पीएल का, तभी आप बचेंगे ये सब चीज से। अच्छा, ये टूलिंग कॉस्ट, अभी अवेयर ऑफ टूलिंग कॉस्ट। टूलिंग कॉस्ट क्या होता है, बाहर में मेरा फॉरेन ओईएम है उसके लिए मेरे को 20 लाख मैन होल्स बना करके भेजना है। तो 20 लाख मैन होल बनाने के लिए मेरे को ढांचा, मोल्ड, डाइज, ये सब चीज मेरे को बनाना होगा। वो अगला बना करके 100 kg का तो भेजेगा नहीं, वो बोलता है सर आप इधर ही बना लीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। वो मेरा ओनरशिप का है, लेकिन आप अपनी फैक्ट्री में रखिए उसको, वो ढांचा लेकर के आप 20 लाख यूनिट बनाइए मैनुअल का, मेरे को आप एक्सपोर्ट करिए। ये तो है टूलिंग कॉस्ट। तो टूलिंग कॉस्ट क्या होता है, ढांचा, मोल्ड, डाई, उसके ऊपर जो मेरे को पैसा मिलता है फॉरेन ओईएम से, मेरा जो कस्टमर है बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज में आता है, तो मेरा बैंक अकाउंट में दिखता है, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज से मेरा पैसा है, क्या चीज में आया, टूलिंग कॉस्ट में आया अलग से। माल बनेगा 1 साल बाद, ढांचा का पहले, ढांचा बहुत बड़ा 1-2 करोड़ रुपया लगता है, तो कुछ तो पेमेंट करेंगे ना पहले से। वो पेमेंट जैसे करते हैं आपके पास में हिट किया, इन लोग स्टार्ट हो जाती है जीएसटी डिपार्टमेंट कि पैसा आया आपके पास में, दिस इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, दिस इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आपका क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और इसके ऊपर में जीएसटी लगेगा और आप जेब से पेमेंट करेंगे, क्योंकि उतना अमाउंट आप फॉरेन, आपका जो आदमी 18% उसको थोड़ी बोलेंगे आप और पेमेंट करिए मेरे को। आपका तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसके साथ में कि आप $100 का, कि मेरे को $1000 आप देंगे ढांचा के लिए, मैं ये बोलूंगा कि $100 प्लस 18%, नहीं, ये आपका खर्चा लग जाएगा। बात समझ में आया। ये देखिए, ये टूलिंग कॉस्ट है, इसमें अमाउंट रिसीव कितना हुआ आपका, ये देखिए अमाउंट कब कब रिसीव हुआ, 13 मई, 1 जून 2022। अब जैसे अमाउंट रिसीव हुआ तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर, अमाउंट रिसीव्ड और द सर्विस जब भी आप देंगे क्या, इनवॉइस जो भी, अमाउंट रिसीव हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हिट हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, वही महीना के अगले महीने में 20 तारीख को 3B में दिखा करके पेमेंट करना है। हमने पेमेंट ही नहीं किया, पता ही नहीं है सर पेमेंट करना है। तो वो केस में मैंने पेमेंट कब किया है, पेमेंट किया 1.5 साल बाद में, 20 नवंबर 2023, ये वाला जो 3rd लास्ट 4th लास्ट कॉलम है। तो इन लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना डिले हुआ, 500 दिन, 600 दिन, 700 दिन, इतना डिले हो गया, तो इंटरेस्ट इन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें
ये टूलिंग कॉस्ट के कैसे अपने बचा जाए, ये देखिए ये एक और दूसरा नोटिस है टूलिंग कॉस्ट के लिए, बड़ा बड़ा अमाउंट्स है। तो अब इसमें कैसे बचा जाए, काफी टैक्स प्लानिंग होता है इसमें। पहला टैक्स प्लानिंग क्या है, पहला मुद्दा क्या है, पहले ये समझिए, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्यों नहीं माना जाता है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलता हूं ढांचा बनाया हूं, बाहर का आदमी है, इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर का ओनरशिप है, उसी का ओनरशिप है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्यों नहीं है। ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इसलिए नहीं है सर, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बोलता है एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के टेरिटरी के बाहर में कुछ भी गया उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो कहां बाहर गया, इतना बड़ा है ये, तो फैक्ट्री का गेट तक ही नहीं जा गया है ये, तो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। ये पैसा जो आया है इसको हम क्या मानेंगे, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दोज थिंग्स जिसका मूवमेंट नहीं होता है, उसका क्या होता है, जहां पर हैंड ओवर कर दिया जाता है कंस्ट्रक्टिवली फॉर ओनरशिप। वो तो फैक्ट्री के अंदर ही हैंड ओवर हम कर दिए, फॉरेन जो मेरा बायर है कंस्ट्रक्टिवली हैंड ओवर कर दिए ना, 6 महीना बनाए उसको, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया मेरा फैक्ट्री हावड़ा में, मैं रजिस्टर्ड हूं सप्लायर हावड़ा में, तो बंगाल का सीजीएसटी एजीएसटी लग गया, पूरा ढांचा 1 करोड़ के ऊपर 18% जेब से पेमेंट करूंगा। इनपुट सर मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं इनपुट कैसे क्लेम कर सकता हूं, इनपुट तो क्लेम करेगा जो आदमी जो रिसिपेंट है, लेकिन वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो बेल्जियम में बैठा हुआ है, तो पूरा क्रेडिट लॉस उनका हो गया, जेब से मेरा गया, कंपेटिटिवनेस पूरा खराब हो गया मेरा, मेजर अमाउंट है ये। तो इस पे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं अपने, बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स है। पहला चीज है इसको गुड्स को, मेरे को पता है इतना बड़ा ढांचा को इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकता हूं, तो ये गुड्स को मैं चेंज करके सर्विस बना दूं, सर्विस तो इंडिया के बाहर में जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं 70-80% ऑफ ये पूरा जो मोल्ड आइज है ये कॉस्ट डिजाइन है, डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइप है, उसके ऊपर में ज्यादा खर्चा गया है। सब्सटैंशियल नेचर, प्रिंसिपल नेचर इज सर्विस, तो वो सर्विस हो गया, मैं सर्विस दे दिया, 0 रेट हो गया। तो जैसे 0 रेट हो गया रिफंड भी मिलेगा, और मेरे को 0 रेट में विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में मेरे को टैक्स का मेरे को माननी पड़ेगा। एक तो वो है। दूसरा क्या है आपका, ये वाला जो मैं बोला हूं, फर्स्ट वाला जो टैक्स प्लानिंग है, स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट इनटू डिजाइन और डेवलपमेंट सर्विसेज। गुड्स दिखाओ मत उसको, लेकिन बहुत रिस्की है। डॉल्फिन डाई का एडवांस रूलिंग है, उसमें इन लोग नेगेट किए इसको, बोले क्या इतना बड़ा टेंजिबल को आप हवा में डाल दिए, सर्विस बना दिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसको प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ता है। दूसरा क्या है, कॉम्पोजिट, जैसे सर बोले कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट, मैं बोलूंगा ये अलग से पेमेंट आना, ये बाद में 1 साल बाद में मैं 20 लाख का यूनिट में सप्लाई करूंगा, नहीं, ये कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ढांचा भी बनाऊंगा और मैं आपको 20 लाख यूनिट एक्सपोर्ट भी करूंगा, तो एक कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ढांचा बनाना तो एक प्रयोग है, लेकिन जो अपना मेन है 20 लाख यूनिट अपने को एक्सपोर्ट करना, दैट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई इज एक्सपोर्ट, तो वो आपका जो मोल्ड एंड डाइस का डायरेक्ट टूलिंग कॉस्ट आपका बच जाता है उसमें। इसमें भी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अमोर्टाइज, 1 करोड़ रुपया मेरा लगा, 20 लाख यूनिट बनाना है मेरे को, 1 करोड़ रुपया लगा मेरा ढांचा बनाने में, तो 20 लाख यूनिट कितना हो गया, 5 रुपया पर यूनिट, तो 100 रुपया पर यूनिट प्लस 5 रुपये, 105 में मैं बेचूंगा, कर सकता हूं ना। अलग से आप पैसा मत दो मेरे को, पहले जैसे पैसा जैसे आ गया उसके अगला महीना से आपको पेमेंट करना लग जाए, आपको हो जाएगा। जब मैं आपको एक्सपोर्ट करूंगा उसके साथ में छिपा करके आप मेरे को पैसा दे दो, उसका अमोर्टाइज, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो बोलते हैं, इसमें बच सकता है। काफी जरिया और है ऐसे करके। अच्छा ये देखिए, अभी सर से बात हो रहा था, सर बोली क्या सर इतना बेतुका क्वेरीज भी रेज होते हैं डिपार्टमेंट और से, तो मैं सर को बोला सर आप मेरा प्रेजेंटेशन देखिए आपको लगेगा सभी बेतुका पॉइंट्स है, उसमें से सबसे बेतुका पॉइंट ये वाला। बेतुका पॉइंट क्या है सर, अपने को सबको पता है, कोई अगर फॉरेन एक्सपोर्टर, मतलब कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं कुछ भी चीज, अब बाहर का आदमी है, वो अगर CIF कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट, मेरा जो बाहर का जो सप्लायर है वो डायरेक्ट फॉरेन शिपिंग लाइन से अपना बात कर लिया और मेरे को CIF में चार्ज कर रहा है, तो जो फॉरेन शिपिंग लाइन है किसको सर्विस दे रहा है, डायरेक्टली मेरे बाहर वाला आदमी को दे रहा है, मेरे सप्लायर को, मेरे को तो दे रहा नहीं है। तो CIF में मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इसमें राहत अपने को ऑलरेडी मिल चुका है, मोहित मिनरल्स केस बोल करके 2022 में। क्या है कि इफ एनी इंपोर्ट इज हैपनिंग ऑन CIF बेसिस, कॉस्ट आपका इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट में, जहां पर जो फॉरेन शिपिंग लाइन है ही इज गिविंग सर्विस टू योर फॉरेन एक्सपोर्टर, तो आपको यहां पर RCM में पेमेंट करने का दरकार नहीं है। ये मैं यहां पर क्यों दिखाया हूं, ये आपका सीरियल नंबर 10 है, ये ऑलरेडी खारिज हो चुका है, ये ऑलरेडी खारिज हो चुका है। ये देखिए, ये आपका ओमिटेड, लास्ट में देखिए
ये ओमिटेड है नोटिफिकेशन 13/2023 कहां से 2023 से ओमिटेड है। क्या ओमिटेड है? कोई भी सीआईएफ इंपोर्ट्स हो रहे हैं तो सीआईएफ में तो सर ऑलरेडी फ्रेट वेट के ऊपर में जब माल आता है तो जब वैल्यूएशन करती है पोर्ट में तो ऑलरेडी आईजीएसटी तो पेमेंट करते ही है ना अपने उसके ऊपर में 10% फ्रेट है ये है वैसे वैसे करके वापस से आरसीएम में मैं पेमेंट करूं तो उसको उन लोग खारिज कर दिया था। अभी ये कब हो गया था? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मोहित मिनरल्स का प्लस नोटिफिकेशन आया। Notification is binding on you also, binding on me also. Departmental circular is binding on department, not on me. But notification is delegated legislation. It is binding on all. Notification सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद में भी जो ये नोटिस जो अभी आया है 6 महीने पहले इन लोग वो डाल दिए, जबकि उनको पता है कि कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा, बट दे हैव देयर मैकेनिज्म्स टू क्रिएट प्रेशर ऑन यू। ये एक पॉइंट डालने से इनका कितना अमाउंट हो गया? 8,33,000 का ये ऐड कर दिया यहाँ पे, बेतुका पॉइंट है। अब आप जाओगे, आपको ये सब कहानी पता है क्या? ये हुआ है वो हुआ ऐसे करके, तो ऑलवेज मैं यही सर को भी बोल रहा था, एंकरेज योर कंसल्टेंट, योर सीए लॉयर टू गो एंड इंटरेक्ट विद द ऑफिसर। ही नोज दिस, एटलीस्ट ही शुड नो दिस। ये पहला पॉइंट पूरा बेतुका है। इसका नीचे वाला पॉइंट, इंपोर्ट किया कुछ माल सीआईएफ पे, उसके ऊपर में लगा दिया हो तो एकदम ही बेतुका है। दूसरा बेतुका सब पॉइंट इसमें नीचे वाला, ये क्या हो गया? मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं सीआईएफ में, मैं सीआईएफ में एक्सपोर्ट कर रहा हूं। सीआईएफ मतलब क्या हुआ? मैं इंडियन शिपिंग लाइन को पकड़ करके इंडिया में मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं और सामने वाला आदमी से रियलाइज कर रहा हूं एज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हुआ ना, सीआईएफ तो एक्सपोर्ट प्रोसीड हुआ ना। क्या एफओबी एक्सपोर्ट होता है वो अलग होता है? नहीं, एवरीथिंग इज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फॉर अस। इट इज जीरो रेटेड। जितना प्रोसीड्स अपना आ रहा है 96A में 9 महीने में आना चाहिए, तो मेरे पास में सीआईएफ का पूरा पैसा आया है, फ्रेट का भी आया है, और जो मेरा इंडियन शिपिंग लाइन है वो मेरे से फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करेगा। फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करेगा ना, कब से? फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। ये तो पहले एग्जाम था ना, एक्सपोर्ट के ऊपर में आउटबाउंड ओशन फ्रेट एग्जाम था पहले 2018, 19, 20, 21, 22 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है ये वापस से। बोलने का मतलब क्या है सर? इंडियन शिपिंग लाइन इधर है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, आप इंडिया में रजिस्टर्ड, आईजीएसटी का इनवॉइस चार्ज करेगा कि भाई इतना वेसल का आपका भाड़ा है, यही चीज है ना, और आप पेमेंट करेंगे, इंपोर्ट क्लेम करेंगे, काम खत्म। और आप जो उनको सेल कर रही है बाहर में वो तो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ रहा है। कुछ भी गलत समझ में आया आपको? कुछ भी गलत इसमें आपका है नहीं। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट बोल रहा है सीआईएफ का आपको मिला है कितना? 116 करोड़ 66 लाख, नहीं 1 करोड़ 66 लाख 69,000 ये आपको एक्सपोर्ट के संबंध में आपको फ्रेट मिला है। और सीआईएफ को संधि विच्छेद करके एफओबी अलग कर दिए, सीआईएफ का एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अलग कर दिए, और बोल रहे हैं कि आप ही मतलब कि शिपिंग लाइन हो और आपको जीएसटी पेमेंट करना है। ये कोई बात हुआ? आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑफ द फ्रेट टू द इंडियन शिपिंग लाइन अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, क्लेम्ड इट, मेरे पास इनवॉइस है, लेकिन बेतुका कोई सर पैर ही नहीं है इसमें। सीआईएफ में मेरा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को संधि विच्छेद करके एक फ्रेट को अमाउंट को लेकर के मैं उसके ऊपर में पेमेंट करूंगा आरसीएम, डजंट मेक सेंस। तो ये सब पर्टिकुलर केसेस है। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, आप इंपोर्ट कर रहे हो एफओबी पे, क्या मानिए सीआईएफ में ही आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप एफओबी में इंपोर्ट कर रहे हो फ्री ऑन बोर्ड में, उसके ऊपर में आप जो भी फॉरेन शिपिंग लाइन, ये वाला केस देखिए जो मैं हाईलाइट किया हूं, फॉरेन शिपिंग लाइन को आप फ्रेट पेमेंट कर रहे हो, तो ये इंपोर्ट और सर्विस हुआ कि नहीं हुआ? कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 11, सर्विस प्रोवाइडर फॉरेन शिपिंग लाइन इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, पहला टिक। सर्विस रिसिपिएंट अपने इंडिया में रजिस्टर्ड है, दूसरा टिक। प्लेस ऑफ सप्लाई वेदर ऑफ द ओशन फ्रेट, आउटबाउंड इनबाउंड ओशन फ्रेट जो अपना इंपोर्ट का है वो इंडिया में रहेगा कि बाहर का है? प्लेस ऑफ सप्लाई वो कहां का है बताइए? इंडिया का है। वेरी गुड। ये कब से हुआ है सर? 1 अक्टूबर 2022 से क्या हुआ है सर? आपका एक्सपोर्ट फ्रेट के ऊपर में नॉर्मल जीएसटी लगने लग गया है, और एक साल जस्ट बाद में 1 अक्टूबर 2023 से क्या हुआ है आपका, ये चीज आपका क्लैरिफाई हुआ है कि आपको आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा। कि आप अगर कोई भी फॉरेन शिपिंग लाइन को एंगेज कर रहे हो, आप एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, अगर आप एफओबी में कर रहे हो तो आपको क्या होगा? फॉरेन शिपिंग लाइन सर्विस दे रहा है, हुज आउटसाइड इंडिया, यू आर इन इंडिया। तो ये केस में क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय फ्रेट, ओशन फ्रेट, ये आपका बन जाता है डिफॉल्ट सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो आपका है, तो इट बिकम्स द रेसिपिएंट, मतलब मेरा लोकेशन, तो वो इंडिया का है हर केस में। और ये अगर नहीं करेंगे 5 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ का ओशन फ्रेट रहता है,
उसके ऊपर में 5% RCM पेमेंट करना पड़ता है वही महीना में। 1 करोड़ मानिए 2 करोड़ का है, उसके ऊपर 5% कितना हो गया? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया मैंने पेमेंट अभी नहीं किया, सीए से बात हुआ 3 महीने बाद में पता चला, 3 महीने का इंटरेस्ट उसके ऊपर 18%। इट्स अ बिग अमाउंट। तो ये चीज आपको अच्छा से समझना चाहिए और चेक भी करना चाहिए। SEZ यूनिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा सर क्यों नहीं होएगा? SEZ तो आपका इंडिया में ही है, तो फॉरेन टेरिटरी है, लेकिन ओशन फ्रेट का हुआ आपका। SEZ को तो आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से आप वहां पर दे रहे हो तो वो आपका एक्सपोर्ट बना जाएगा, लेकिन ओशन फ्रेट का हुआ आपका, वो तो आपका रोड फ्रेट हुआ कि आपका जो भी चीज हुआ उसमें, ओशन फ्रेट उसमें तो जीरो रेटेड होएगा वो आपका उसमें। लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा कि वो सब जो आप भेजे हो दैट हैज बीन यूज्ड फॉर ऑथराइज्ड SEZ पर्पसेस के उसका डेवलपर का एक्सेट्रा। इंपोर्ट कर रहे हैं सपोज हाँ। SEZ में जो FOB टर्म्स ओनली, तब भी वो RCM पेमेंट करना है। क्यों नहीं होएगा? एकदम होएगा आपका, क्योंकि देखिए आप अगर बाहर में आप रिसिपेंट ऑफ सर्विस जो है वो तो आप SEZ में रजिस्ट्रेशन लेकर के रखे हो आप, लेकिन SEZ प्राइमा फेसी आपका इंडियन लैंड है नहीं। हाँ, फॉरेन लैंड है आपका। फॉरेन टू फॉरेन में आपका यहाँ पर लास्ट वाला में सर बोल रही है कि लास्ट वाला में पढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं सर इसके ऊपर वाला में पढ़ना चाहिए। ये इंपोर्ट का है, देखिए इनबाउंड फ्रेट, ये फॉरेनर है, फॉरेन शिपिंग लाइन। सर बोल रही है SEZ में इनका रजिस्ट्रेशन है, ये भी तो फॉरेनर ही है, इंडिया में कहाँ है इनका। लेकिन ये चीज देखना होगा सर कि ये GST में रजिस्ट्रेशन को फॉरेनर मानेंगे कि GST में रजिस्ट्रेशन को इंडिया मानेंगे, ये चीज देखना पड़ेगा। तो ये चीज एक बार देख करके ये चीज समझना होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है सर? 2A 3B, ये तो सबसे पुराना पाप है, सबसे पुराना पाप है 2A 3B। जो पहले 2A था अब 2B हो गया। अब तो वी नो कि अगर 2B में नहीं आया तो वी कैन नॉट क्लेम दी इनपुट, लेकिन जब डिपार्टमेंटल ऑडिट आता था 2021-22, कब से ये मैंडेट हुआ लॉ में आया है 2B को फॉलो करना है? 1 जनवरी 2022। उसके पहले तो 2A चलता था, प्रोविजनल क्रेडिट चलता था 5%, फिर 10, एकदम खिचड़ी था। एग्जैक्टली तो वो वाले केस में इन लोग क्या बोल रहे हैं सर कि आपका ये देखिए जो मैं हाईलाइट किया हूं 2A 3B का मिसमैच है। तो आपका इनपुट लेजर में ये सब पार्टीज में आपका इतना अमाउंट आया हुआ है और 2A मतलब 8A जो आपका है 2A में कम अमाउंट आया है, तो इतना आपका 2A में कम आया हुआ है, तो GSTR 1 में सप्लायर इतना कम डाला है, आपने ज्यादा क्लेम किया है, तो आप इसको या तो अंडरटेकिंग लेकर के आप जस्टिफाई करो। ये अंडरटेकिंग पता है ना 183 193 वाला अंडरटेकिंग जो है, सप्लायर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए। कैसा अंडरटेकिंग? ऐसा अंडरटेकिंग कि सर आपने सप्लाई किया है मुझे, और दूसरा है आपने गवर्नमेंट को जो मेरे से टैक्स कलेक्ट किया आपने पेमेंट किया है, ये लिख करके मेरे को आप दे दीजिए इनवॉइसेस के साथ में कि मेरे से भूल हो गया। क्या 4 भूल हुआ है? पहला भूल कि मैंने GSTR 1 ही फाइल नहीं किया, उसकी वजह से आपका 2A में आ रहा नहीं है, लेकिन इनवॉइसेस है, मैंने टैक्स कलेक्ट करके पेमेंट कर दिया। दूसरा भूल, मैंने 1 तो चढ़ाया लेकिन आपका इनवॉइस चढ़ाना भूल गया, तो आपका 2A में आया नहीं है सर, तो उसकी वजह से आपका 2A 3B मिसमैच है। तीसरा भूल सप्लायर क्या कर सकता है? सर मैंने 1B फाइल किया, आपका भी चढ़ाया, लेकिन B2B को B2C कर दिया, तो आपका 2A में कभी आया नहीं। चौथा भूल क्या है सर? मैं 1 तो चढ़ाया, टाइम पे भी चढ़ाया, सब चीज किया, लेकिन आपका जो इनवॉइस चढ़ा रहा था मैंने दूसरे जन का GSTN डाल दिया, तो आपके 2A में आ ही नहीं सकते। ये 4 भूल को मिला करके इन लोग बोले ऐसा अगर कोई भी भूल हो, कब 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 1 जनवरी 2022 तक, क्योंकि उसके बाद तो 2B मैंडेटरी हो गया, 2A तो खत्म, उसके पहले तक तो आप जा करके प्लीज प्लीड टू योर सप्लायर और उनसे ऐसा एक अंडरटेकिंग लीजिए कि सर मैंने जो आपको टैक्स पेमेंट किया है गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए, यू हैव मेड द पेमेंट टू द गवर्नमेंट एंड यू हैव जेन्युइनली गिवन मी सप्लाई। ये आप अंडरटेकिंग दीजिए तो ये आपका इतना अमाउंट छूट जाएगा, ये पूरा अमाउंट छूट जाएगा आपका। ये मैं यहां पर दिया हूं। अच्छा ब्लॉक क्रेडिट, ये तो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। ब्लॉक क्रेडिट का टोटल अमाउंट देखे ये पार्टी का कितना है? ये करोड़ है कि लाख है? कितना है? 27,37,000, 27 लाख, और ये मतलब कि 60-70 लाख रुपया तो ब्लॉक क्रेडिट उठा लिया एडॉक। सर जैसे बोल रहे थे कि एडॉक काम होता है, ये इसका साइकी समझिए कैसे कैसे उठाते हैं। कोई भी सप्लायर का, आप अपने सप्लायर का GSTN सर्च टैक्स पेयर में टाइप करेंगे तो उनका नाम आएगा जो सेकंड कॉलम में, नेम ऑफ सप्लायर। पहला ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? ऑकरे एट होम, एयर फ्रांस, एमिरेट्स। तो पहला ट्रिगरिंग पॉइंट ये होता है, अच्छा बिजनेस से क्या रिलेटेड है भाई। उसके बाद में सेकंड ट्रिगरिंग पॉइंट कहां पर है? डिपार्टमेंट का। पहला HSN का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वो क्या है? अदर फर्नीचर एंड पार्ट्स। फर्नीचर, होम डेकोर, गीजर, टेबल, ये तो ऑफिस रिलेटेड नहीं होगा, ये तो घर रिलेटेड होगा। सबको मार दो, सबको डाल देते हैं ब्लॉक क्रेडिट है। आप प्रूफ करो कि ब्लॉक क्रेडिट नहीं है।
ये देखिए, आप देखिए इसमें अदर फर्नीचर एंड पार्ट्स, ये कहां से, हाथ से नहीं लिखे है. दिस इज द जीएसटी पोर्टल टेलिंग देम द नेचर ऑफ देयर HSN. ये सप्लायर का HSN है जहां से मैंने फ्लावर पॉट खरीदा है कि फर्नीचर खरीदा है. तो ये नेचर देख करके बोलते हैं नहीं ये तो 68,000 का जो आपका इनवॉइस है, दिस इज फर्नीचर, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस. वेयर एज फर्नीचर विच इज अ मूवेबल फर्नीचर, इट इज रिलेटेड टू माई बिजनेस. मेरा इनवॉइस है, डिलीवरी एड्रेस भी मेरा ऑफिस का है. अच्छा, कभी घर के लिए खरीदते हैं ना, भूल से भी डिलीवरी एड्रेस घर का मत दे दीजिएगा सप्लायर को, तो फंस जाएंगे. बाद में ऑडिट होएगा, देखिए आप बिलिंग एड्रेस ऑफिस बोल रहे ऑफिस का है, डिलीवरी एड्रेस घर पे. उन्होंने नहीं सर, घर पे डिलीवरी लिए फिर गाड़ी से लेके ऑफिस में लेके, कौन मानेगा? गाड़ी से वापस ऑफिस लेके जाएंगे क्या? नहीं. तो ये प्लानिंग करना पड़ेगा. इसमें एमिरेट्स क्यों दिया? एमिरेट्स, अब सर एमिरेट्स दिया है. अच्छा सर बोल रहे हैं एमिरेट्स क्यों दिया है? मेरा तो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, लेकिन आज तक मेरा माल यूएई गया ही नहीं है. मेरा माल जाता चाइना. मैं वाइफ लोग के साथ यूएई घूम करके आया हूं, जितना था एयर फ्रेट सब डाल दिया बिजनेस के नाम पे. होता है, करते हैं. ट्रेड फेयर तो कहीं भी हो सकता है. एग्जैक्टली. तो यू विल हैव टू प्रूव कि आई वो हैड गॉन देयर टू एक्सप्लोर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रेड फेयर, एक्सपोज एक्सेट्रा. सिर्फ इनकम टैक्स के लिए भी मैं बोल रहा हूं. इनकम टैक्स में पूरा आपका सेक्शन 37 जो आपका बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसिव अलाउ हो जाएगा, वहां पर डीजल हो जाएगा. वो बोलेगा कि अच्छा आप स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, आपका तो यहाँ पर बड़ा बाजार में कपड़ा का दुकान है, आप क्या वहां पर करेंगे? सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट. आईफोन परचेज किए थे, आईफोन परचेज किए, वो आईफोन अलाउ कर दे रहे हैं. आईफोन 80,000 रुपया का परचेज किया, उसमें 12,500 रुपया का क्रेडिट है. हाउ इज इट रिलेटिंग टू योर बिजनेस? नो सर, दिस इज रिलेटेड टू माई, नहीं, ये मेरा रिलेटेड टू माई बिजनेस है, मैं इसको यूज करता हूँ. और ये हायर फोरम में होल्ड नहीं करेगा, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, उनको छोड़ देंगे. वो पॉइंट वो बोलते हैं, बोलने में क्या जाता है सर. मैं तो CIF को संधि विच्छेद करके फ्रेट निकाल करके खुद ये मतलब शिपिंग लाइन बन गया, उसके ऊपर में डबल टैक्स मान रही है. तो ये तो बहुत लेजिटिमेट है. 20,000 का हमारा इनपुट है हाँ. और 10,000 एडवोकेट हमारा फीस ले लिया हाँ. बिल फाइल करने के लिए. व्हाट इज द पॉइंट? बट वी हैव गॉट, नहीं, बट स्टिल आप जाइए, उसमें मिल जाएगा आपको. बहुत सारे केस लॉज है. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो बोलता है इन नेचर ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हम आईफोन खरीदे हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हम लोग इसलिए गए क्योंकि वो ताकि वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. अच्छा सर का हम एक क्वेश्चन और डेवलप करते हैं. ये आईफोन नहीं समझ करके, फॉर एग्जांपल ये मैंने पूरा छत बनाया, ये सीलिंग बनाया. अब ये सीलिंग बनाया, ये तो ऑफिस है मेरा, सीलिंग बनाया, इतना बड़ा खर्चा 15 लाख रुपया जो है मैंने कैपिटलाइज ही किया होगा. कैपिटलाइज किया है ना बुक्स में, क्या खर्चा मारूंगा क्या? पूरा प्रॉफिट गिर जाएगा मेरा. 15 लाख रुपया कैपिटलाइज किया और डेप्रिसिएशन लेता हूं. अच्छा ये इमूवेबल है, इसके ऊपर इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. वेरी गुड, नहीं मिलेगा. 17(5)(d) नहीं मिलेगा. लेकिन इसको अगर मैं खर्चा मारता हूं, मानिए कि सिर्फ ये एक छोटा पोर्शन है, कि मानिए ये HVAC है, HVAC प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं अपने, डिबेटेबल. ये बोलेगा कि इट इज फिक्सर टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन कोई कोई केस लॉज बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए सब छूट है, कैपिटलाइज करे, खर्चा मारे, कुछ भी नहीं करे, सब छूट है, क्लेम कर सकते हैं अपने. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का भी एक दायरा है. अभी तो आप लोग को, यू गाइस वुड बी अवेयर ऑफ सफारी रिट्रीट्स, प्लांट और मशीनरी. तो प्लांट को बिल्डिंग बना दिए, मशीनरी तो मशीनरी है, प्लांट है फॉर जो RPG के लिए, संजीव गोइंका के लिए क्वेस्ट मॉल तो प्लांट ही है, बोल सकते हैं ना वो प्लांट है, क्योंकि वो प्लांट और मशीनरी लॉ में लिखा हुआ है. प्लांट एंड मशीनरी अगर होता तो क्वेस्ट मॉल तो मशीनरी हो नहीं सकता ना. क्वेस्ट मॉल में जो आपका जनरेटर है वो मशीनरी होता. तो लूपहोल करके बहुत मजा किए. तो अभी रेट्रोस्पेक्टिव करके सब सीधा कर दिए कि आपका कोई भी बिल्डिंग इवन यूज फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी, इफ दैट इज गिविंग यू रेंट, दैट मे बी प्लांट फॉर यू, बट एज पर GST लॉ it is not plant and machinery, and input is not eligible on that. Sir, one more query. I have exported the good, but my supplier has defaulted on my payment. आप एक्सपोर्ट किए और सप्लायर ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पे. अच्छा. So when I have exported, I have claimed IGST. I have got the refund of the IGST. सर तो वो डिफॉल्ट कर दिए तो फॉरेक्स तो आया ही नहीं है आपके पास में. फॉरेक्स कम आया, लेकिन हमने ITC पूरा लिया जितना माल. गलत है सर. आप देखिए, मैं इसके आगे मैं देखूंगा. अपना रूल 96 है. रूल 96 क्या बोलता है सर? अगर कुछ भी एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स तो 3 महीने में करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस गुड्स. और अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है अंडर LUT में किए है ना, विद पेमेंट की है, विद पेमेंट भी करिए, 9 महीना का समय देता है. और जो आपका जो फेमा के अंदर में जो टाइमलाइन है एक्सटेंडेबल,
जो आप 9 महीना ही समझिए, 9 महीने के अंदर में अगर आता नहीं, आपने जो रिफंड लिया है वो रिफंड आपको वापस देना पड़ सकता है, क्योंकि फॉरेक्स आया नहीं है आपके पास में। बुक्स में हम लोगों ने बैड डेट का प्रोविजन कर लिया, लेकिन आईटीसी कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्सल नहीं किया। सर तो कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी आप रिवर्सल कैसे कर सकते हैं? आप तो रिफंड क्लेम किया, अगर रिवर्स करते तो रिफंड मिलता ही नहीं आपको। विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का मतलब क्या हुआ? जेब से 5% पेमेंट कर रही है, लेकिन 5% कैश में नहीं जा रहा है। इनपुट है मेरा, वो इनपुट को सेट ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन पेमेंट विद पेमेंट ही हो रहा है ना मेरा। तो इनपुट को आप पहले रिवर्स करते तो वो आप कैसे सेट ऑफ करते हो? तो इनपुट को तो आप रिवर्स किए नहीं, आई हैव अंडरस्टूड दैट। लेकिन आप ये मेरा बात समझिए ना, आप रूल 96 जो ए है और 96 बी है, 96 बी क्या बोलता है? अगर 9 महीने में आपका अगर नहीं आता है पैसा, तो जो रिफंड मिला है उसको कृपया करके DRC 03 से आप रिफंड कर दीजिए। जब आपके पास में आ जाएगा तो उसके बाद में वापस से उसको क्लेम करिए उसको। ये आपका प्रॉपर है। जब GST ऑडिट होएगा तो इसमें आपका हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ये भी अपने डिस्कस करेंगे वाला चीज। बहुत बड़ा ये वाला है सर, अभी आजकल कैप्सूल लिफ्ट्स आ रहे हैं ना, जो घर तो बन गया बहुत साल पहले, अचानक लगा कि एक लिफ्ट लगाएंगे, तो कैप्सूल लिफ्ट को क्या माना जाएगा? मूवेबल? मैम भी एकदम डिबेटेबल डिस्प्यूटेड टॉपिक एकदम रेज किए, लिफ्ट। अब लिफ्ट में क्या बोलते हैं कि सब मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट क्या है। जो मैं अभी ये बोल रहा था, यही स्लाइड है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं हाईलाइट किया हूं, इसको समझिए। एनी कंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड, वो अगर इमूवेबल है टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज, मतलब ये जो रूफ है ये अगर खर्चा में मार लेता हूं तो कोई भी GST ऑफिसर आकर के रोक नहीं सकता, कोई भी, ये इमूवेबल भी हो, पेंट भी हो। लेकिन इफ आई पुट इट इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा कोई अमाउंट करते नहीं है। वैसे ही मैम का है लिफ्ट। अब लिफ्ट है, इट मूव्स इन इट्स फल्क्रम टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, बट बहुत सारे केस लॉज ऐसा है, जैसे HVAC है, आपके जो लिफ्ट्स है एक्सेट्रा, द पर्पस ऑफ हैविंग देम इज दैट दे आर innately attached to the property, that they cannot be unscrewed and taken away। बात समझिए, आज जो अपना मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मेन इन प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है? ये टेबल है, ये टेबल तो मूव करके अनस्क्रू करके मैं कहीं पे भी लेके जा सकता, आई कैन क्लेम अनडिस्प्यूटेडली, 4 इनवॉइस भी इंटर रिलेटेड हो, आई कैन क्लेम इनपुट। लेकिन जो लिफ्ट है, HVAC है, ये लगाया क्यों गया है? विद द इंटेंशन दैट वी विल नेवर टेक इट आउट। So what is the intention when I put that? That it is with the intention that it is an attached fixture to the immovable property. Prefabricated structure. मेरा बहुत बड़ा टॉय का मेरे को वेयर हाउस बनाना है श्रीजन टेक पार्क में, मैं उसमें प्रॉपर वो फाउंडेशन करके नहीं करूंगा, बस नीचे में फाउंडेशन रहेगा, मैं उसको प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर PFS स्क्रू और नट बोल्ट से पूरा करूंगा कि कल उसको अनस्क्रू करके लेके भी जा सकूं। लेकिन बहुत सारे एडवांस रूलिंग्स केस लॉज ऐसा आए है कि सर इतना मेहनत क्यों करेंगे आप लगाने के टाइम ये सोचिए कि कभी अनस्क्रू करके लेके जाएंगे आप उसको। when you are buying an immovable property or a permanent fixture to that, the intention is also taken into consideration. But there are few case laws which advocate and which are in favor, but there are few which are adverse against taking the intention in nature. एसेट कैपिटलाइज करिए, डेप्रिसिएशन लीजिए, आपका जो आपका इनपुट का बेनिफिट 1 साल में नहीं मिलेगा, ओवर 6-7 इयर्स आपको विद पूरा नहीं मिलेगा, टू द एक्सटेंट डेप्रिसिएशन जो आपका 30% तक का मिलेगा। हाँ, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जैसे आर्किटेक्ट ने फीस दिया है GST लगा के, या कोई इंजीनियर ने फीस दिया है, तो वो हम लोग कैपिटलाइज करिए मैम, तो उसका जो इनपुट है वो मिलेगा, वो कैपिटलाइज करिए आप, कैपिटलाइज करिए उसको, वो आप देखिए, वो कैपिटलाइज अगर आप वो सर्विस हो गया विद द नेचर जो है इंटीरियर और का ये सब चीज का, आप उसको अगर जैसे कैपिटलाइज कर लिए ना आप, तो इट बिकम्स इन द नेचर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको वो कैपिटलाइज्ड आपका हो गया जो भी चीज है, तो उसमें कैपिटलाइज में उसमें आपका इशू रहेगा। लेकिन आप अगर इसको खर्चा मारते हो तो आप इसमें यू कैन प्रूव टुमारो कि दिस वाज डन फॉर माय ऑफिस बिल्डिंग एंड आई कैन क्लेम इनपुट अनडिस्प्यूटेडली। बट आप उसको अगर कैपिटलाइज करते हो तो उसमें आपका कुछ ना कुछ किंतु परंतु तो आएगा ही। अब जैसे ये वाला ही देखिए ना, आपका ही मैं बोलता हूँ, ये वाला नोटिस है मैम, ये क्या है, ब्रिक्स खरीदा मैं, सैंड सीमेंट स्टोन खरीदा, कितना अमाउंट का, 40,000 का, ये भी मेरे ऑफिस बिल्डिंग रेनोवेशन के लिए था, रिपेयर मेंटेनेंस में डाला हूं मैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, रिपेयर नहीं, कैपिटलाइज किया मैं इसको, वो बोल रहे हैं कि सर व्हाट इज द रिलेशन टू द बिजनेस, तो वो बोलते हैं कि रिलेशन आप बताओ बिजनेस का क्या है। अरे भाई मेरा ऑफिस बिल्डिंग के लिए है, सो व्हाट इज, तो आप जो करोगे तभी भी उन लोग क्वेरी तो रेस करेंगे ही उसमें जो भी चीज। सो इट इज सेफ कि बहुत छोटा मोटा अमाउंट खर्चा में करिए,
बड़ा अमाउंट कैपिटलाइज करके डिप्रिसिएशन लीजिए उसका। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी सर्विसेज ले रहे हैं, हाँ। सपोज उसको कैपिटलाइज नहीं करें हाँ। और खर्चा में डाल दें, खर्चा में कुछ भी आप मारे, इमूवेबल रिलेटेड पेंट भी मारे या पूरा पूरा बिल्डिंग भी मारे आप खर्चा में वही मैं बोल रहा हूं ना, उसका तोड़ है यहाँ पर। मैं पूरा बिल्डिंग खर्चा में मारूं, विच इज वेरी हाइपोथेटिकल, तभी भी डिस्कशन से के लिए आपको इनपुट मिलेगा। क्योंकि ये देखिए, टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड, जब तक बुक्स में कैपिटलाइज नहीं हुआ है तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन नहीं माना जाएगा, ब्लॉक क्रेडिट आपका अट्रैक्ट ही नहीं होगा। अच्छा, ये आपका 180 डेज सबसे ज्यादा पिंचिंग वाला चीज, ये आपका 180 डेज क्या है, आपका एक्चुअल पेमेंट। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोवाइजो रेड विद रूल 37 क्या बोलता है? इनवॉइस कौन सा डेट का है? पहला कॉलम देखिए, 4 सितंबर 2021। मैंने एक्चुअल पेमेंट कब किया है? 6 दिसंबर 2023, मतलब 2.5 साल बाद में, मतलब 777 डेज बाद में पेमेंट किया है, बिलेटेड पेमेंट है। सो दे आर नॉट आस्किंग मी फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट। इंटरेस्ट मांगे है ना, इनपुट रिवर्सल कैसे होगा? पेमेंट ऑलरेडी कर दिया हो ना, टैक्स ऑलरेडी पेमेंट हो गया है, तो इनपुट रिवर्सल कैसे होगा? उसका बीच का दरमियान का आपका इंटरेस्ट मांगेगा। तो अब इसके लिए क्या है आपका, ये आप करोगे सर, तो ये इंटरेस्ट तो खर्चा हो गया। अब मानिए कि सेकंड वाला केस देखिए, ये वाला, ये एक ही लेजर है, एक लेजर में 3 लाख रुपए का चुना। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट इजीएस्ट शेरी पिकिंग फॉर एनी डिपार्टमेंटल ऑफिसर। सन्ड्री क्रेडिटर मांगेंगे और बैंक स्टेटमेंट्स मांगेंगे, बैठ करके चेक करेंगे फीफो के हिसाब से कब पेमेंट्स हुए, क्या होएगा। एक लेजर में 3-3, 4-4 लाख रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। 10 लेजर आपका अगर रिसीवेबल्स पेमेंट्स ठीक नहीं है, डिस्प्यूटेड पेमेंट्स है, राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, तो छोटा अमाउंट रखिए उसको, कि उसको वैसे रखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा आपका इसमें रहेगा। इनपुट का प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये तो पेमेंट ही नहीं हुआ है, पहला दो तो पेमेंट हुआ था, इंटरेस्ट का सिर्फ खर्चा था, इसमें तो इंटरेस्ट प्लस रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अच्छा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी कितना करना है? 45,000। ये तो पेमेंट ही नहीं हुआ है कभी सप्लायर को, 180 दिन क्या 10 साल हो गया और पेमेंट नहीं हुआ है। अब इसको मैं जब रिवर्स करूंगा, तो आज रिवर्स करूंगा कौन से टेबल पे? कौन से टेबल में? टेबल 4B2, दैट इज टेम्परेरी रिवर्सल। टेम्परेरी रिवर्सल जीएसटीआर 3B का टेम्परेरी रिवर्सल का खासियत क्या है कि मैं जब पेमेंट करूंगा इसको वापस प्रॉपर्ली, तब मैं इसको रिक्लेम कर सकता हूं। रिक्लेम करने कहां करूंगा रिक्लेम? ये देखिए, टेबल 4B2 टेम्परेरी रिवर्सल का 4-5 आइटम है, उसमें मैंने हाईलाइट किया 180 दिन का। और कहां रिक्लेम करूंगा मैं? टेबल 4D1 को में, 4B2 में रिवर्स किया टेम्परेरी, रिक्लेम कहां किया? 4A5 में हाथ से, जो महीने में पेमेंट किया हूं 4A5 में हाथ से। 4A5 में क्या होता है? ऑटो पॉपुलेट होता है 2B से, हाथ से कुछ भी डालूंगा मैं रिक्लेम करने के लिए, एंड आई विल हैव टू रिपोर्ट दैट इन 4D1। 4D1 में रिक्लेम कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है यहां पर? एनी आईटीसी विच हैज बीन रिवर्स्ड अर्लियर इन 4B2 टेम्परेरी, और जो अभी रिक्लेम हो रहा है तो उसको अलग से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 4D2 में, 4D1 में आपको। तो ये आप जब करोगे, तो ये करने से क्या है? हैज एनीवन सीन दिस स्टेटमेंट लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट। ये क्या है? ये क्या है? जितना टेम्परेरी रिवर्सल है, टेम्परेरी रिवर्सल मतलब क्या हुआ? 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, बुक्स में एंट्री नहीं है, लेकिन 2B में आ गया है, क्लेम कर लूं मैं इनपुट? नहीं, उसको मैं क्या करूंगा? 4A5 में ऑटो पॉपुलेट होकर के मेरा जीएसटीआर 3B में 2B से मैं ऑटो पॉपुलेट 4A5 में हो जाता है ना, इनपुट कम्स इन देयर, वी हैव टू रिड्यूस इट। सो वेयर विल वी रिड्यूस इट फ्रॉम? वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम टेबल 4B2 टेम्परेरी रिवर्सल, कि बाद में जब इनवॉइस मिल जाएगा अगले महीने में एंट्री मार्क करके अगले महीने में क्लेम करूंगा मैं। तो एज पर बुक्स ही क्लेम करते हैं। एज पर बुक्स में एंट्री नहीं है सर, वो तो क्लेम ऐसे ही नहीं कर सकते। अगले महीने में एंट्री बुक्स इनवॉइस आया, बहुत ढीला आदमी है, इनवॉइस ही नहीं दिया, इनवॉइस ही नहीं है, खो गया, कहाँ से क्लेम करूँ? 2B में आ गया, बुक्स में नहीं आया तो नहीं क्लेम कर सकता, लोअर ही जाएगा। नहीं, लोअर ही जाएगा, क्लेम नहीं कर सकता। आप क्लेम करोगे तो अगर थारो जीएसटी ऑडिट अगर होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, कि इतना खोज ले इन लोग कि भाई वो 2A 2B में भी है, इसमें 1 महीना का डिफरेंस, ऐसे वो यूजुअली नहीं होता, बट कायदा से नहीं करना चाहिए। हाँ बोलिए सर, अगर मैं उसी इनवॉइस का सिर्फ क्लेम करता हूँ जो कि हमारा बुक्स में एंट्री है, तो 2B में आना चाहिए सर। ना 2B में आ रहा है, मैंने मैं बुक्स का और 2B का एक एंट्री रिकॉन्साइल करके ही जितना टैली होता है उतना ही क्लेम करता हूँ। एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा इन बुक और एक्स्ट्रा इन 2B, आई एम नॉट क्लेमिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्रॉपर सर, एकदम प्रॉपर। मतलब आप जितना मेहनत कर रहे हैं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग भी इतना मेहनत नहीं करते फाइलिंग के टाइम में, आप जितना एक चीज करके, और ये बहुत अच्छा ट्रेड प्रैक्टिस है, ऐसे ही बरकरार रखिए। लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूं मैं, जो बुक्स में एंट्री है लेकिन 2B में आया नहीं है, लास्ट डेट कब है क्लेम करने का?
30th नवंबर, तो पीछे पढ़ना पड़ेगा। अभी IMS आ गया है, ये सब तो पुराना कहानी है। IMS आ गया है। IMS क्या है सर? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब चीज सब छट गया है। क्या हो गया? अब सप्लायर GSTR 1 चढ़ाता है। कब चढ़ाता है GSTR 1? 11 तारीख को। और क्या होता है आपका 11 तारीख, क्या मानिए 11 तारीख को ही भूल जाइए, 3-4 तारीख को इनवॉइस जो आपका, वो भी छोड़ दीजिए, एकदम स्टार्टिंग में जाते हैं ई इनवॉइस। एग्जैक्टली, ई इनवॉइस जैसे बनाता है वैसे ही चला जाता है GSTR 1 में। सप्लायर का 1 में जैसे किया और अगला महीना का 1 तारीख आया, वैसे ही मेरा IMS में आ गया। IMS में ऑटो पॉपुलेट होते जा रहा है। वो 1 फाइल किया अपना 11 तारीख को। मेरा जो IMS है 12, 13, 14 तारीख को GSTR 2 भी मेरे पास में ड्राफ्ट आ गया। मैं देखता हूं इसमें, अरे ये तो मेरे बुक्स में एंट्री नहीं है इसमें, अच्छा ये तो गलत एंट्री मारा है, ये तो गलत है, ये क्रेडिट नोट मेरा है ही नहीं, मैं रिवर्स क्यों करूं? तो एक्सेप्ट रिजेक्ट अपने करते हैं, फिर उसको ऑटो ड्राफ्ट रीड्राफ्ट करते हैं। रीड्राफ्ट करने के बाद में जैसे रीड्राफ्ट क्लिक करते हैं, वो जितना अपने रिजेक्ट किए हैं उतना इनपुट कम जाता है अपना GSTR 3B में। वी क्लेम लेस इफ एनी क्रेडिट नोट विच दी सप्लायर हैज इशूड। क्रेडिट नोट मतलब क्या हुआ कि सप्लायर अपना बेनिफिट ले रहा है, सेल कैंसिल कर रहा है, तो पहले उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम ले रहा है वो, तो इनपुट मेरे को कम लेना पड़ेगा। पैरिटी होना चाहिए ना। मैं इनपुट 100 लेकर के रखा हूं, 20 रुपए का क्रेडिट नोट में इशू किया है और वो मतलब कि टैक्स पेमेंट सिर्फ 80 रुपया का कर रहा है, तो मेरे को भी तो 80 रुपया का इनपुट क्लेम करना होगा ना। तो क्रेडिट नोट जैसे आ रहा है मेरे पास में, मेरा सप्लायर का, मींस माय डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न, इफ आई रिजेक्ट दैट इन IMS, तो क्या होता है, मैं जैसे रिजेक्ट करता हूं उसको, तो मेरा इनपुट कम नहीं होता, लेकिन अगले महीने उसका आउटपुट टैक्स वापस बढ़ जाएगा। 100 रुपया पहले था सेल अगस्त महीने में, क्रेडिट नोट इशू किया कब? सितंबर महीने में, 80 रुपया सेल हो गया और मैंने सितंबर महीने में ही रिजेक्ट कर दिया। नवंबर महीने में उसका GSTR 1 वापस से 100 रुपया हो गया, मतलब 20 रुपया ऐड हो गया, तो उसको टैक्स 20 रुपया पे वापस से पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज आई हैव क्लेम्ड इनपुट ऑन 100 रुपीज, मैं रिजेक्ट किया हूं, 80 रुपीज नहीं किया हूं इनपुट का, तो वो बेनिफिट 80 रुपीज का कैसे ले सकता है? उसको तो टैक्स 100 रुपया पे करना पड़ेगा। मैं 100 रुपया का इनपुट क्लेम किया। बात समझ में आ रही है? पैरिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट IMS समझना। अभी तो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी IMS अभी नहीं है, लेकिन सर हो जाएगा। और सिर्फ वो नहीं, हार्ड फ्रीजिंग, हार्ड लॉकिंग ऑफ GSTR 3B का जो टेबल 4 का हार्ड लॉकिंग हो जाएगा बाद में। From May onwards. वो जनवरी से बोले थे, लेकिन सर पूरा इंडस्ट्री गिर जाएगा अगर हो जाएगा। हम लोग को ही समझ में नहीं आता IMS क्या है, तो हार्ड लॉक कहां से करेंगे? अभी बहुत टाइम है, लेकिन एक मेरा और क्वेश्चन है। In case of export, we used to sell sample to our buyer. सैंपल के लिए आते हैं सर, एकदम लास्ट में है। मैं आऊंगा, आपका क्वेरी लूंगा, लेट मी गो थ्रू। मैं सब चीज लिखा हूं इसमें, आप जो सैंपल बोल रहे हो एक्सेट्रा। ये क्या है सर? ट्रेड लाइसेंस, छोटा अमाउंट्स, गवर्नमेंट, इन लोग बोलते हैं ऐसा ट्रेड लाइसेंस है, गवर्नमेंट से आपने सर्विस ली, RCM दीजिए। अरे भाई ट्रेड लाइसेंस है, खर्चा, रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से सर्विस ली है, गवर्नमेंट से सर्विस ली है सर। ये गवर्नमेंट से सर्विस लिया हुआ RCM पेमेंट करना है अपने को, इस पे करना है सर इस पे। ये क्या है? ये लॉ देखिए सर, लॉ क्या बोलता है? CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एक्सेट्रा 18% RCM लगेगा, लेकिन 5,000 के नीचे का अगर ट्रेड लाइसेंस है, एक बार रिन्यूअल कर रहे हैं, तब नहीं लगेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन 5,000 के नीचे का है तो नहीं लगेगा। इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है? कोई भी गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट को दे रहा है सर्विस, तो RCM नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? फाइन पेनल्टी, GST का पेनल्टी दे रही है गवर्नमेंट को, तो सर्विस ले रही है गवर्नमेंट से? नहीं ले रही है, तो कोई भी फाइन पेनल्टी के ऊपर में RCM पेमेंट नहीं करना है। कोई भी प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर टैक्स करना है क्या RCM का? नहीं। रॉयल्टी टैक्स होता है क्या? रॉयल्टी के ऊपर RCM पेमेंट करना है? रॉयल्टी गवर्नमेंट को दे रही है, खान जो गवर्नमेंट का है उसमें से अपनी माइनिंग कर रही है, रॉयल्टी पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट को, RCM पेमेंट करना है कि नहीं करना? और इज रॉयल्टी या टैक्स? सर रेंट कंट्रोल चालान पे भी लगेगा वो 5,000 में। वापस बोलिए सर। रेंट कंट्रोल चालान जो है, रेंट कंट्रोल जो गवर्नमेंट को जो पेमेंट कर रही है सर, वो देखिए रेंट का आपका अलग प्रावधान है। ये देखिए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको स्प्लिट कर दिया गया है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको अलग दिया गया है। उसमें देखिए नीचे में एग्जेम्पशन नहीं दिया। ये देखिए आप दूसरा वाला केस का बात कर रहे हो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि सरकार का प्रॉपर्टी है, आपको दे रहा है, आप सरकार को 5,000 रुपया से कम दे रहे हो भाड़ा, 5,600 मानिए 5,600 भी दे रहे हैं, लेकिन 5,000 से कम भी दे रहे हो, तभी भी उसका एग्जेम्पशन नहीं है।
उसमें देना ही है। उसमें आपको देना है आरसीएम। हाउ जीएसटी पीपल नॉन के भाई ये इसने ये क्या किया है तो उसमें देना कंपलसरी है। सर जीएसटी पीपल लोग जब ऑडिट करेंगे तब आपका जो डेबिट साइड पीएल का है उसमें उन लोग चेक करते हैं, ट्रेड लाइसेंस कुछ भी पेमेंट है गवर्नमेंट का वैसे करके। वैसे भी जो वो करते हैं आधा चीज उनको वैसे भी समझ में कितना आता है वो भी मुश्किल है। क्लबिंग होके भी बट entry नहीं ये क्लबिंग नहीं है, ये आपका ये रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ करके अगर कोई भी अपने अगर सर्विस ले रही है और गवर्नमेंट का तो हर ट्रांजैक्शन का अलग 5,000 देखेंगे, पूरा क्लबिंग करके नहीं देखेंगे अपने, हर ट्रांजैक्शन का अलग 5,000 देखेंगे। एक राहत वो हुआ। दूसरा राहत क्या हुआ सर? पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रॉयल्टी। जैसे मैं बोल रहा था रॉयल्टी अभी डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से कि इट इज नॉट अ टैक्स, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। तो रॉयल्टी जो गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है कृपया आरसीएम पेमेंट करके क्लेम कर लीजिए उसमें। अच्छा ट्रेड लाइसेंस जो अपने कर रही है सर 5-10 हज़ार रुपया है, क्या लॉ लगाएंगे, पेमेंट करके क्लेम कर लीजिए क्योंकि ऑडिट में तो उठना ही है। आप बोलेंगे सर ये तो ट्रेड लाइसेंस जो जा रहा है ये तो सर रिन्यूअल के लिए है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस सर्विस क्या है, ये सब कुछ क्या करना है, पेमेंट करके क्लेम करिए। बहुत सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जीएसटी नंबर ही नहीं तो क्या करें। सर जीएसटी नंबर उनको अगर वो कोई भी टीडीएस के प्रावधान में आते हैं जहां पर उनको अगर वो नहीं है उनके जो भी चीज है तो आप अपने आरसीएम में आप अपना पेमेंट करिए। आपको आरसीएम ये तभी ये चीज दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बर्डन मत करिए कलेक्ट करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करिए। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप कुछ भी सर्विस ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना समय नहीं है कि वो टैक्स एक डिपार्टमेंट से लेकर के पॉकेट से दूसरा पॉकेट में डाले। वो आप ही को बोल दिए कि आप आरसीएम समझ करके सेल्फ इनवॉइस से क्रिएट कर लीजिए, 5% 18% पेमेंट करके इनपुट क्लेम कर लीजिए। ये मेन मुद्दा है बेसिकली। सर अभी तक जो ट्रेड लाइसेंस पे हम लोग पैसा नहीं दिए, आरसीएम नहीं दिए। 5,000 के ऊपर का है, दे दीजिए सर, अभी दे सकते हैं? दे दीजिए। अब कौन से साल का है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर माने कौन सा साल? 24-25 कर लीजिए, अभी 30 नवंबर के अंदर कर सकते हैं, कर लीजिए सर। कब से इफेक्टिव है ये सब चीज? सर ये इफेक्टिव पहले से ही है, ये वाला जो आपका आरसीएम का प्रावधान ये पहले से ही है आपका, कोई ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं है। सर आरओसी फीस, अब सर बोलेंगे आरओसी गवर्नमेंट को थोड़ी जा रहा है, कोर्ट को जा रहा है, कोर्ट को जा रहा है ना, एमसीए तो कोर्ट है, तो कोर्ट गवर्नमेंट है क्या? सरकार लेजिस्लेटर और जुडिशियरी दोनों सेम ही है क्या? ये चीज आप डिपार्टमेंटल ऑफिसर को बोलिए 500,000 रुपया के लिए पेमेंट करके खत्म करिए सर। वही बोल रहा हूँ ना सर, हाँ 18% करिए। बोलने में कुछ नहीं है सर, कोर्ट है ये है वो सब बोल सकते हो, उसमें कोई वो चीज नहीं है। आरसीएम और टीडीएस का एक ही लगना, काट के जमा करते ही जाएगा। अच्छा फायर लाइसेंस ले रही है सर तो लगेगा नहीं, फायर लाइसेंस के लिए एग्जाम्पशन दिया हुआ है क्योंकि एक सेफ्टी पर्पस के लिए आप ले रही है, जनरल पब्लिक के लिए। आप बोलेंगे कि ट्रेड लाइसेंस भी तो जनरल पब्लिक के लिए पर्पस के लिए, लेकिन नहीं, ट्रेड लाइसेंस के लिए ऐसा कोई अलग से नहीं दिया गया। अच्छा मैंने बोला था सेल्फ इनवॉइसिंग, सर ऐसा सेल्फ इनवॉइस होता है, ये बनाइए सर। गवर्नमेंट से कुछ भी सर्विस ले रही है, जेब से पेमेंट कर रही है, अनरजिस्टर्ड है ना सर, जैसे बोले अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ये बनाइए सर। 30 दिन के अंदर में पेमेंट करना है आपको। आपका हर रेंट जितना पेमेंट कर रही है हर महीने 30 डेज के अंदर में आपको आरसीएम पेमेंट करना है और सेल्फ इनवॉइस भी बनाना है। अब सिर्फ सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाना है। हाँ जी सर एग्जैक्टली, ये आपका होएगा 8 अक्टूबर 2024 से अब स्टार्ट हो गया। उसके पहले का जो पीरियड है उसमें आपको इंटरेस्ट पे बच सकते हैं आप उसमें, क्योंकि आप सेल्फ इनवॉइस 8 अक्टूबर 2024 से, उसके पहले का आप उसी टाइम का कोई सेल्फ इनवॉइस बना लीजिए बैक डेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो आपका है, अभी आपका बंदिश कर दिया गया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 जो है टाइम ऑफ सप्लाई, जो बोलते हैं कि विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द सर्विस सेल्फ इनवॉइस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ वो नहीं, टेबल 13 किसको पता है, अभी एक हफ्ते पहले ही आया टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर 1, जो डॉक्यूमेंट समरी जो देते हैं, जो आपका इनवॉइस 1 से लेकर के 20 है एक्सेट्रा, वो मैंडेटरी अभी कर दिया गया है। तो सेल्फ इनवॉइस का जो नंबरिंग है 1 2 3 4 वो भी मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा हर जीएसटीआर 1 में, ऑन ऑल द इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। ये मैंडेट हो गया है। जीटीए में ट्रांसपोर्ट है, एसोसिएटेड रोड कैरियर, तो वो तो रजिस्टर्ड है, लेकिन हम आरसीएम देते हैं उस पे। सर वो रजिस्टर्ड है, आप आरसीएम देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज चूज नहीं की है ना, कंसाइनमेंट नोट मिलता है ना आपको, तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो बाय रोड सर इफ दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर डूइंग इट अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अगर वो जीटीए बोलते हैं कि हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर में कर रहे हैं, एनेक्सर 3 उनका डिक्लेरेशन है इनवॉइस पे, तो आपको आरसीएम में नहीं करने का दरकार है। लेकिन वो बाय रोड आता है तो बाय रोड के लिए तो जीटीए तो मतलब बाय रोड ही होता है। नॉर्मल रोड और जीटीए में सिर्फ एक फर्क है कंसाइनमेंट नोट का, जो मैंने आपको बताया कंसाइनमेंट, वो नहीं मिलता है तो भूल जाइए, एग्जेम्प्ट है, सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जैसे ये सेल्फ इनवॉइसिंग आप हाँ जी मैंडेटरी है, मैंडेटरी हो गया सर। तो आरसीएम में अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होएगा, ये नहीं करेंगे तो ये तीनों चीज है सर,
ये तीनों चीज है, नहीं करेंगे तो क्या होएगा, जनरल पेनल्टी 25-25 हजार। दूसरा क्या है, सर जैसे बोले कि हर महीना गवर्नमेंट को पेमेंट करना है 5,600, इनको एक सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करना है, कब, जिस महीने का एंड है उसके 30 दिन के अंदर, अंडर रूल 47A फ्रॉम 8 ऑफ अक्टूबर 2024। और ये नहीं करते हैं तब क्या होएगा इनका, ये पेमेंट अगर आरसीएम का नहीं करते हैं तो इनका 18% तो इनका इंटरेस्ट और लगेगा। दूसरा इनका क्या है, इनपुट भी इनको क्लेम नहीं मिलेगा, इनपुट भी क्लेम नहीं मिलेगा। इनपुट क्लेम करने का सेक्शन क्या है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज A, जो क्या बोलता है कि इनवॉइस डेबिट नोट तो होना चाहिए तभी तो इनपुट का क्लेम करेंगे। सेल्फ इनवॉइस का मतलब क्या हुआ, टैक्स इनवॉइस ही होता है, वो कहां से डिराइव करता है अपना पावर, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F रेड विद न्यू रूल 47A, जो बोलता है कि सेल्फ इनवॉइस भी एक तरीके का टैक्स इनवॉइस ही है। अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो आप इनपुट चैलेंज हो सकता है आपका। तो ये टैली से निकलता है, सेटिंग करना पड़ता है, टैली से पूरा निकल जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन का अलग सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करिए। ये वो वाला धंधा नहीं है कि वो 5,000 रुपया दिन वाला जो है वो सब पुराना 94 का सब हट गया है वो। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम है जो ट्रांसपोर्ट का जो कंसाइनमेंट नोट है वो इशू चल रहा है, वो सॉर्ट नहीं हुआ, रेट वगैरह के देंगे तो वो 30 दिन से ज्यादा हो गया है, सेल्फ इनवॉइस भी लोग बनाएंगे, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस केस में क्या करेंगे? डिस्प्यूट चल रहा मतलब क्या हुआ, पेमेंट कर दिए क्या नहीं किए, पेमेंट नहीं किए तो अर्लीस्ट ऑफ आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है अर्लीस्ट ऑफ 3, ये वाला जो आपका केस है, ये है आपका केस है राइट साइड में। पेमेंट डेट जो अभी तक किए नहीं है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, सप्लायर इनवॉइस और सेल्फ इनवॉइस आपने बनाया नहीं है तो 2 महीने के अंदर तो कुछ तो करना ही होगा आपको। अभी क्या हो गया, रूल आपने सर्विस ले लिया, डिस्प्यूटेड भी है, लेकिन 30 डेज के अंदर सेल्फ इनवॉइस बनाना है तो आपको बांध दिया गया है कि 60 डेज सर्विस लिए पहला दिन और 30 दिन एंड ऑफ द मंथ के अंदर तक तो आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना ही करना है। और सेल्फ इनवॉइस का नंबर भी अब मैंडेटरी हो गया टेबल 13 में, बहुत आदमी लोगों को पता ही नहीं है। मतलब अभी जो भी GSTR 1 में करिए सर सेल्फ इनवॉइस तो केस में भी अर्लियर ऑफ जो बता रहे हैं, हाँ सर, अर्लियर ऑफ पेमेंट डेट आप पहले पेमेंट कर दिए और सेल्फ इनवॉइस आप बनाए नहीं हो, तभी भी आप बंदिश हो गए हो कि आपको पेमेंट करना ही है आरसीएम में और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है इंटरेस्ट लगने का। पेमेंट आप जिस महीना कर दियो, आप जिस महीना पेमेंट कर दियो, मतलब कि कंसाइन जो आप गाड़ी वाला को, जीटीए वाला को पेमेंट किए हो, आप आरसीएम पेमेंट का बात नहीं कर रहा हूं, जीटीए वाला को पेमेंट किए हो गाड़ी के लिए और आपने आरसीएम पेमेंट नहीं किया, अगले महीने से आपका स्टार्ट हो गया है इंटरेस्ट, टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट हो गया आपका, सेल्फ इनवॉइस भूल जाइए। पेमेंट नहीं किए तो सेल्फ इनवॉइस ये बोलता है कि विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस तो आपको बना करके पेमेंट करना ही है। तो तभी मैं बोल रहा हूं ना 60 डेज का आपका बन गया। क्योंकि सेल्फ इनवॉइस खाली गवर्नमेंट के लिए है क्या? आपके लिए सर, गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है, कहीं अपलोड भी नहीं करना है, सिर्फ उसका नंबर है। सेल्फ इनवॉइस बनाना है, इट इज अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F एंड आपका जो रूल 46 है जो बोलता है, रूल 46 क्या बोलता है, ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी क्लेम दी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें आपका मेंशन किया हुआ है कि सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F में भी मेंशन किया हुआ है कि ये सब अनरजिस्टर्ड पार्टी से सर्विस ले रही है तो कच्चा का बिल थोड़ी देगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी का इनवॉइस कहां से देगा। तो आपके सेफगार्ड के लिए आप खुद एक इनवॉइस बनाते हैं इनपुट क्लेम करने के लिए, नहीं तो आप अगर क्लेम अभी तो आपका 30 डेज में करना है, आपने कुछ नहीं किया है तो बाद में ऑडिट के टाइम में ये सब इनपुट चैलेंज हो सकता है, आपका सब रिवर्सल करना पड़ सकता है। ऑडिट का सर ये टर्नओवर कब तक है ऑडिट का लेवल? सर ऑडिट का आपका है 18-19 का भी चल रहा है, जो लास्ट डेट शोकॉज का 30 जून है, 17-18 का खत्म हो गया है, लास्ट डेट था ऑर्डर निकलने का 2 ऑफ ये फरवरी 2025। इसका टर्नओवर लिमिट क्या है, कौन से टर्नओवर के ऊपर ऑडिट है? सर ऐसा कुछ नहीं है, ऑडिट तो आपका 20 करोड़ के ऊपर लास्ट टैक्स पेयर यूनिट है, वो हर साल यूजुअली होता है। आपका टर्नओवर पूरा अचानक से गिर जाए, कि आपका मैट्रिक्स में आ जाए, रेशियोज आपका बिगड़े, कि आपका कोई मतलब कि डीजी आर्म से आए, तो अलग अलग रीजन से ऑडिट खुलने का ऑडिट आता है सर। टाइम बट कुछ नहीं है आपका, टाइम बट वही शोकॉस का ही बोल रहा हूँ ना, 18-19 साल के लिए, 17-18 के लिए अब ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डेट टू इशू शोकॉस नोटिस। ऑडिट का मतलब क्या हुआ, ऑडिट मतलब कि हम छानबीन करेंगे, आपको कुछ पेमेंट करने का दरकार नहीं है, हम आपका फाइल को ट्रांसफर करेंगे एडजुडिकेशन सेल में, और आपने अगर पहले वॉलंटरीली पेमेंट नहीं किया ऑडिट के टाइम में तब हम ट्रांसफर करेंगे, तब वो शोकॉज इशू करेगा, तब ऑर्डर आएगा, वो चीज है। तो इसमें आपका जो ऑडिट जो है 17-18 का लास्ट डेट शोकॉज का कब था वो पूछिए आप, वो था आपका 6 अगस्त 2024।
74 का फ्रॉड केस का बोल रहा हूं, और ऑर्डर निकलने का कब था? 6 महीना और जोड़ लीजिए, अगस्त से 6 महीना जोड़ करके 6 फरवरी 2025, तो आपका तो 17-18 तो क्लोज हो गया। 74 फ्रॉड में भी कोई नहीं खोल सकता। 18-19 का चल रहा है, जो लास्ट डेट है शोकॉज खुलने का 30 जून है, तो ब्लॉक ऑडिट जो क्लाइंट्स के हमारे खुले 18-19 से लेकर के 23-24 तक का, वो सब साथ में अगर फाइल में करे तो 18-19 का प्रेशर की वजह से बाकी 5 साल का भी ब्लॉक साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ शोकॉज इशू करेंगे तो 18-19 तो टाइम बढ़ हो जाएगा, तो उनको बाकी भी उनको साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा, वो चीज है। सर एक हम लोग का सेल्स कमीशन दिया जाता है, तो वो लोग का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल भी हम लोगों को ही बनाना पड़ता है, तो उस पे भी अगर हम लोग इनपुट चाहेंगे, सेल्स कमीशन मतलब कि आपको मिल हम दे रहे हैं उसको, आप दे रहे हैं तो इनपुट आपको, agent है। हाँ सेल्स एजेंट है, ठीक है, तो वो मान लीजिए 10,000 रुपए ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, उसको अकाउंट में उसका अकाउंट डिटेल्स दे दिए, उसमें डाल हाँ। दिया, ठीक है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हाँ। तो उसको अगर हम लोग सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे, तो सेल्फ इनवॉइस तो मैडम ओनली कम्स इन द केस ऑफ आरसीएम। आपका कमीशन एजेंट इज नॉट अ नोटिफाइड सर्विस फॉर आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, तो आरसीएम लगेगा ही नहीं मैम उसमें। ये तो नॉर्मल सिंपल केस है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है, आप जीएसटी अपना उससे चार्ज करिए, आप अपना जो भी मतलब कि वो आपसे वो 10,000 ले लिया, आपको कुछ भी इनपुट तो चार्ज कर ही नहीं सकता है, बस और कुछ नहीं करना उसमें। ये वाला केस क्या है सर, सब लोग परेशान होते हैं, आज नहीं तो कल परेशान होंगे। क्या परेशान होंगे? माल नहीं आया सर, माल ही नहीं आया सर, मतलब कि मेरा जो गुड्स है वो मेरे गोडाउन में कि एडिशनल प्लेस प्रिंसिपल प्लेस में आया नहीं है, और आया है तो लेट आया है। मतलब क्या हुआ सर, ये देखिए इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस डेट है देखिए ना 24, 25, 28, 31, 30, मतलब मंथ का लास्ट आपका वीक का उठा लिया इन लोग सब लोग। ईवे बिल एक्सपायर हो रहा है पहला हफ्ता में अगले महीना का, अगला को आप अगर जीआरएन इशू नहीं करते हो, रोड चलान डिलीवरी चलान में स्टैंप नहीं करते हो, डेट रिसीट मेंशन नहीं करते हो, आपका इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, जो माल जिस दिन आया पक्का आपका कोई एविडेंस है, लॉरी का फोटो खींचते नहीं हो टाइम स्टैम्प के साथ में, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है कि माल आपका 31 के अंदर आया है। ईवे बिल एक्सपायर हो रहा है 2 तारीख को, ऑडिट होएगा 2 तारीख पकड़ेगा, बोलिए माल आपका इनवॉइस डेट था 28 तारीख का, प्रूफ दिखाइए 28, आपने क्लेम किया 28, वो पिछले महीने में, अगले महीने में नहीं क्लेम किया। अगर अगले महीने में क्लेम करे तो पॉइंट ही नहीं है। आपने क्लेम किया है पिछले महीने में, पिछले महीने का ही बिल है, टू बी भी पिछले महीने में ही आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि सच की 2 तारीख को माल आया, माल जिस महीने आया उसी महीने में आपको क्लेम करना है, तो आप क्या करेंगे, एक तो अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स डेबिट रजिस्टर एक तो बना करके टाली में रखेंगे आप, लेकिन आप वो कौन मेहनत करेगा इतना 1-2 दिन के लिए, जो भी चीज आप करते हैं बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन बहुत आदमी लोग करते ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, जीआरएन नहीं है, रोड चलान नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं होने से क्या हुआ, ये चेरी पिकिंग हो गया उनके लिए। लास्ट डेट देखेंगे वे बिल का 2-3 तारीख अगला महीना का, इनपुट देख रही है पिछला महीना में क्लेम हुआ है, बोलेंगे आप एविडेंस दीजिए कि पिछले महीने में आपका माल आया, कोई एविडेंस ही नहीं। तो ये सब 1-1 महीना का अर्ली क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इंटरेस्ट 1 महीने का आपका लग गया, कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट लगा और क्या लगा, 1 महीने का लगा, कितना लगा इसमें इंटरेस्ट, 1000, 5,000 ऐसे करके, लेकिन ये तो सर 1000 ट्रांजैक्शन हो तो कितना हो जाएगा। ये वाला क्या है, माल ही नहीं आया सर। अभी आजकल क्या हो गया, फास्ट ट्रैक 2019-20 के बाद में तो आपका क्या है, टोल हर जगह, इंटर स्टेट का तो टोल पार करके काटा करके तभी तो मेरे पास आता है ना, वे ब्रिज में जाकर के, टोल में रिकॉर्ड ही नहीं है, पीछे में इनके पास में सब रिकॉर्ड है, टोल में आया कि नहीं आया है। आपका लॉरी है, लाइव हो सकता नहीं हो, लेकिन इनका ये रिकॉर्ड है, अभी तो एकदम पक्का रिकॉर्ड है, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है डीजीजीआई के पास, डीजीआईएम के पास में। लॉरी अगर आपका कंसाइनमेंट नोट में मेंशन्ड है, इनवॉइस में मेंशन्ड है, इनपुट क्लेम कर रही है, माल दिखा रही है आया है, प्रोडक्शन में डाल रही है, माल बेच रही है, एवरीथिंग इज नेगेटेड। अगर ये प्रूव नहीं कर पाएंगे आप कि माल नहीं आया, अरे सर कम से कम 15 से 20 अपील्स में फाइल किया और 15 से 20 अपील्स पेंडिंग है कॉन्डोनेशन में। यही केस में 17, 18, 18, 19 के 17, 18 का आपका ऑर्डर निकले 6 फरवरी को, 3 महीने का मिलता है, मतलब कि 6 मई को लास्ट डेट था, प्लस 1 महीना कॉन्डोनेशन पीरियड, अपील इतना पेंडिंग है। क्या यही मुद्दा पे कि माल नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपका सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। अरे वो कभी पाप किया, किसी के साथ कुछ भी चीज किया, मेरे पास तो माल आया है लेकिन आई डोंट हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बोल रहे हैं माल ही नहीं आया सर, हमारे यहाँ पर टोल में दिख रहा ही नहीं है, क्या करोगे आप? तो आप ये देखिए, ये सब इसमें लास्ट में तो 3 में तो इंट्रास्ट रेट ही है, ये तो अपने कंटेस्ट कर सकते हैं, टोल ही नहीं जाएगा सर, ये तो टोल ही नहीं आएगा, ये तो इंट्रास्ट रेट है। ऊपर का देखिए, बाहर का है आपका
अब ये देखिए, ये मेरा पब्लिश्ड आर्टिकल है ये जो इनफैक्ट पार्लियामेंट और सब जगह ये मेंबर्स में गया भी था, मेरे जीएसटी न्यूज़ लेटर का था फरवरी का। इसमें मैंने मेंशन किया था ये सब तो अब मिनिमम होना ही चाहिए अपने पास में प्रूफ करने के लिए। क्या क्या है? वे बिल होना चाहिए, कंसाइनमेंट नोट होना चाहिए। सर फ्री ऑन डिलीवरी लिए, फ्री ऑन डिलीवरी क्या होता है? सप्लायर फेक है, कोई इधर उधर से पकड़ लिए वो व्हीकल को, पेमेंट कुछ होता नहीं है, दिखा देते हैं माल आया नहीं है कैश का, मेरे को कैश निकालना है पेमेंट करके, करते हैं आदमी लोग जो है, अरे पेमेंट कर दिए, कैश मिल गया उनको जो भी है। तो वो सब चीज अब सब खत्म, सब चीज पकड़ में एनफोर्समेंट में आ गया। वो सब केस में क्या होता है? फ्री ऑन डिलीवरी, मतलब कि मैंने पेमेंट नहीं किया है, ये जो जीटीए को सप्लायर पेमेंट किया तो और ज्यादा शक होगा। अगर मैं पेमेंट किया हूं जीटीए को तो मेरे पास में बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास में बैंक ट्रांजैक्शन है मेरे पास में, राइट? वे बिल है, कंसाइनमेंट नोट है, ये देखिए काटा स्लिप है, वेमेंट जब अपने लोड करते हैं माल एक बार काटा होता है, जब जाता है उधर तब जाकर के काटा होता है। बहुत आदमी लोग फाड़ करके फेंक देते हैं, बहुत खतरा का चीज है। काटा का तो स्लिप रहना ही चाहिए अपने पास में, एटलीस्ट 5-8 साल तो कभी भी केस खुल सकता है। आपके लिए नहीं, आपका सप्लायर धोखा दे दिया किसी और को, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, 6 महीने 3B भी फाइल नहीं किया, कोई भी कारण से नॉन एग्जिस्टेंट, जिस दिन नॉन एग्जिस्टेंट हो गया और वो इफेक्टिव कैंसिलेशन डेट रेट्रोस्पेक्टिव अगर कर ली 1 साल पहले और आपका 100 ट्रांजैक्शन है वो 1 साल के अंदर में माल आया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स हम फाड़ करके फेंक दिए, माल आया है मेरे पास में, वो माल यूज करके मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट भी किया है, अपील तक भी, रजिस्ट्रार्ड रिट पे तक भी जाएंगे तभी भी राहत मिलना मुश्किल है। डॉक्यूमेंट्स रखिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लोकल गाड़ी वाला से नहीं यूज करके जीटीए करिए, जिससे कंसाइनमेंट नोट्स रहे, बिल्टी स्लिप्स रहे, वे बिल्स रहे, व्हीकल नंबर्स रहे, व्हीकल नंबर जो गया है वो प्रॉपर रहे, उसका परिवहन में जाकर के आपका जो आरसी रहता है उसमें देखे कि फिटनेस सर्टिफिकेट, नेशनल परमिट आया है क्या नहीं आया है। ये सब चोट खाया हुआ आदमी लोग जो है उन लोग ही समझ सकता है, जो आदमी लोग वैन में डाल दिया, आजकल फोटो खींचिए बोलते हैं आदमी लोग, लॉरी आ रहा है फोटो खींचिए, आप टाइम स्टैम्प करिए। नहीं तो जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है। आपके सप्लायर का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, आप फंस गए, आपके पास में माल भी आया तभी भी आप फंस गए। फोटो सेव करिए सर, फोटो के साथ में इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर खाता लिखिए, जीआरएन इशू करिए, गुड्स रिसीट नोट जिस दिन माल आया है उसके साथ में आप अपना ये सब करिए। ये सब बाद में करना पड़ेगा, ये सब अभी करने का नहीं, सब बाद में करने का चीज है। ये मेरे क्लाइंट का 80,000 स्क्रैप का ये डिस्प्यूट आया कि 80,000 माल ही नहीं आया, जबकि अगला दिख रहा है कि 2 कस्टमर को, ये श्रीहरि को और इसको 75,000 बेचा है, अगला साल 5,000 कैरी फॉरवर्ड होकर के अगला साल इसको पेमेंट किया। ये क्या होता है? ट्रेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिसीट टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो ये पर्टिकुलर चीज बाद में सबमिट करना पड़ेगा, नहीं मानेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स और जो चीज मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। हाँ। जैसे ये फेडेक्स का कोरियर चार्ज लेते हैं, उसमें आईजीएसटी लगाता है, तो मेरा एक केस है उसमें 29,000 लगा दिया, इनवॉइस भी हमको आईजीएसटी करके आपका, और पोर्टल में नहीं दिखाया, पोर्टल में उसने सर जो पैसा लिया वही दिखाया। तो ये क्या झगड़ा करे या भूल जाए? मतलब कि ये आपका क्या है, फेडेक्स जो है उसको आपने पेमेंट किया है, इंपोर्ट कंसाइनमेंट है, उसके इंपोर्ट कंसाइनमेंट है, ठीक है, आईजीएसटी चार्ज किया है, हाँ, फिर शिपिंग आपने आईजीएसटी पेमेंट किया है, इंपोर्ट जो भी आप बिल ऑफ एंट्री पे आईजीएसटी पूरा पेमेंट किया है, प्रॉपर है, चालान है उसका, शिपिंग आपका बिल ऑफ एंट्री है आपके पास में, जो भी चीज है, ये आपका 2B में नहीं आया हुआ है ना, अगला चढ़ाया नहीं है ना 1 में, आपका 2B में आया हुआ नहीं है ना। ये दिखाएंगे क्योंकि अभी अप्रैल का रिटर्न फाइल होगा अभी, जो भी है, अगर मानिए आता भी नहीं है, आया नहीं है सर, उसका पोर्टल देख लिया, नहीं आया तभी भी सर का क्या है, मैंने आईजीएसटी पेमेंट किया है ऑन केस ऑफ इंपोर्ट माल बाहर से आया, मैंने पेमेंट किया है सर, आपको 2B देखने का दरकार ही नहीं है। इन केस यू आर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फॉर जो भी है आपका बिल ऑफ एंट्री के टाइम में, सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, रूल 46 में भी मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है? आपको इनवॉइस क्या 2B ये सब चीज देखने का दरकार नहीं। इन दिस पर्टिकुलर केस सिर्फ आपका बिल ऑफ एंट्री ही काफी है एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इवन इफ दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट अपीयर्ड इन जीएसटी और 2B। ये जो पर्टिकुलर केस है, आप जो इंपोर्ट करके आईजीएसटी का पेमेंट करते हैं, ये आपका सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज AA जो आपका 2B में आना चाहिए क्लेम करेंगे, अमेंडेड रूल 36 सब रूल 4 की 2B में आना चाहिए क्लेम करेंगे, वो सब चीज में नहीं आता। कौन सा केसेस नहीं आता है? आरसीएम, कौन सा और तो कौन सा केस है? इंपोर्ट में आईजीएसटी पेमेंट की है, आईएसडी क्रेडिट और नॉन रेसिडेंट का कोई भी क्रेडिट है,
तो ये सब क्रेडिट्स है। अगला अपना GSTR 1 में चढ़ाए भी नहीं, आपके 2B में भी नहीं आए, लेकिन यू हैव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दैट यू हैव फाइल्ड द बिल ऑफ एंट्री एंड पेड द IGST। हमारा 100% एक्सपोर्ट है, तो सब क्लेम देते हैं, तो उसमें क्लेम में कैसे एलिजिबल होगा? सर ये तो आप क्लेम कर सकते हो, ये तो आपका पकड़ लेगा किस चीज से पकड़े, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना। हम कोशिश करेंगे अभी। सर्कुलर 1, मैं आपको सर्कुलर भी बोल देता हूँ, सर्कुलर 123 ऑफ 2019 रेड आपका रूल 46 सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज D, आपका ये रूल जो 46 हो गया, रूल 36 हो गया, सब जगह मेंशन किया हुआ है आपका कि RCM के केस में और IGST पेमेंट के केस में, इंपोर्ट के केस में आपको 2B में आने का कोई भी बंदिश नहीं है। आप पेमेंट करिए क्लेम करिए, पेमेंट करिए क्लेम करिए। दूसरा एक और राहत है, आप भूल गए सर, आप क्लेम ही नहीं किए, 10 साल निकल गया, 11वां साल आप क्लेम कर सकते हो इसको, ये केस में कर सकते हो, ये केस में कर सकते हो। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का ये एक अद्भुत केस है जहां पर आप IGST पेमेंट कर रहे हो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, तो आप ये चीज अगर 30 नवंबर को भी पछाड़ देता है, आगे भी क्लेम कर सकते हैं आप। इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता, आपका कोई टच नहीं कर सकता इसको। This is a big problem. Very knowledgeable discussion, but it is very practical. मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट आपको बोल रहा हूं। कि मैंने जो चीज आप लोग को मालूम भी नहीं है, मैंने रोज रूल्स ये केस देखिए जो आपने जैसे मैडम ने बोला कि नोटिफाइड सर्विस नहीं है, शुड आई पे ऑन कमीशन ऑल्सो रिवर्स चार्ज। अगर मैडम कर दी थी, ये नोटिफाइड नहीं था, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज आर नॉट नोटिफाइड सर्विसेज एंड यू हैव क्लेम्ड इनपुट। ये नहीं लिखा हुआ है कि यू हैव मेड टैक्स। आप पेमेंट की, आप क्लेम किए तो उसको रिवर्स करिए बिकॉज दीज आर नॉट नोटिफाइड। अरेस्ट कर रही है, रेवेन्यू न्यूट्रल है, गवर्नमेंट के पास पैसा गया, मैंने क्लेम किया, केस खत्म। गवर्नमेंट के पास पैसा गया है, आप रिफंड लीजिए, 2 साल निकल गया भूल जाइए, लेकिन आपको ये रिवर्सल करना पड़ेगा। परेशानी करते हैं। कन्वर्जन चार्जेस, ITC 04 कोई फाइल करता है? मतलब कि 100 में से हमेशा एक के आधा आदमी रहता है, कोई बोलता है हाँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि सर आप करते हैं। कुछ किए फिर बाद में भेज अच्छा, ITC 04 फाइल नहीं करेंगे तो ऐसा चिट्ठी दिखेगा, देख लीजिए कितना है, 67 लाख 67 लाख, जॉब वर्क वाला 1.5 करोड़ का सिर्फ 1 पॉइंट का है। मतलब क्या है, बात समझिए सर। जॉब वर्किंग के लिए मैंने माल भेजा है, ये सब पार्टी को भेजा है। इसमें से हो सकता है कोई पार्टी आप लोग जानते भी होंगे, ये सब पार्टी को भेजा है, ये सब पार्टी अपना इनवॉइस रेस किया, ठीक है, वो सब कहानी ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ITC 04 कैसा दिखता है, ये है ITC 04 सर। इसका फिजिकल खाता होना चाहिए, टैली में कोई ऐसा प्रबंध नहीं है, फिजिकल खाता रखिए। कभी INS 1 लेकर के मुंह उठा करके अगर इंटेलिजेंस आ जाए, ये नहीं है तो पूरा जब्त कर लेंगे आपका माल। ये क्या बोलता है, ये बोलता है आपका ये चलान नंबर है, चलान डेट है। चलान नंबर चलान डेट मतलब क्या हुआ, आई एम अ प्रिंसिपल सप्लायर, मैं सामने को जॉब वर्किंग के लिए भेज रहा हूं, 1 साल का टाइम है, वापस 1 साल के अंदर में मेरे को इनपुट मेरे को उसको देना है। तो इसमें क्या है, चलान नंबर, डिलीवरी चलान प्रॉपर होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड। डिलीवरी चलान मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट अ सेल, तो इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं, और इट इज नॉट एन एग्जाम सप्लाई, तो बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट अ सप्लाई, सप्लाई का है, हम तो उनको भेज रहे हैं तो उनसे कुछ पैसा ले रही है क्या, नो। तो ये क्या हो गया, डिलीवरी चलान। और बंगाल में इंट्रा स्टेट जॉब वर्किंग के लिए ईवे बिल है क्या, नहीं है, हटाया हुआ है सर, जॉब वर्किंग के लिए हटाया हुआ है। 1 दिसंबर 2023 को रिपील कर दिया था, ये वापस से 15 दिन बाद में हिमाकत नहीं हुआ, वापस से रिपील कर दिया कि नहीं अभी भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन इंटर स्टेट करेंगे तो आपका है। बोलने का मतलब क्या है सर, ये देखिए, ये एग्जाम्पल, चलान नंबर मेरा कितना क्वांटिटी गया है, 100 क्वांटिटी गया है, 100 क्वांटिटी के अंदर में 100 चलान है, कि एक एविडेंस है गवर्नमेंट के पास में कि 100 माल फैक्ट्री के बाहर में गया है, किसी और के फैक्ट्री में वहां पर माल वो सब हुआ है और वापस आया है। इसका मतलब तो वही समझिए, जो माल वापस आया है उसके लिए क्या है, ये नेक्स्ट पेज, हर चलान, ओरिजिनल चलान जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का है, जो माल जो दे रहा है सामने वाला को जॉब वर्कर का फैक्ट्री के लिए, उसको लिंक करके ये वाला चलान इशूड बाय जॉब वर्कर, ये इशू होना चाहिए। जॉब वर्कर को पता ही नहीं होता डिलीवरी चलान डी क्या होता है, बैठ के हम लोग खुद करते हैं, लेकिन करना पड़ता है ये। अब यहां पर देखिए, ओरिजिनल चलान है 250, ये डुप्लीकेट एंट्री ले रहा है। ये डुप्लीकेट एंट्री क्यों ले रहा है, क्योंकि इस पे मैंने कितना 10 यूनिट दिया था, और मेरा कितना यूनिट आया है, ये चलान पे वापस 5 यूनिट आया है। ये सेम चलान पे सेम दिन दूसरा कंसाइनमेंट में मेरा 5 यूनिट और आया है। सो एक ओरिजिनल चलान पे 2-3 जॉब वर्कर का चलान भी टैग हो सकता है। वो बात समझिए, ये जो मैं हाईलाइट किया हूं, ये क्वांटिटी ये मैच होना चाहिए।
इफ यूक्यूसी डज नॉट चेंज. यूक्यूसी मतलब क्या हुआ, हम दे रहे हैं मीटर में कपड़ा, आ रहा है पीसेस में शर्ट, तो कैसे मैच होएगा? शर्ट तो अलग पीसेस है, ये अलग है, तो वो ठीक है. लेकिन अगर आपका यूक्यूसी चेंज नहीं होता है तो मैच होना चाहिए. 100 यूनिट गया 99 आया, 1 यूनिट डीम सप्लाई, उसके ऊपर पेमेंट करिए और होता है. और ये तो कुछ नहीं है, ये तो इतने सारे लोग में से सर एक है भले मानुष की सर मेंटेन करते हैं, फाइल करते हैं, रजिस्टर है. कितने आदमी को पता ही नहीं है फाइलिंग भी होता है, फाइलिंग भी होता है. दिया था ना हाँ 3 साल का. सर 2-3 साल का कुछ एक्सेप्शन नहीं है इसका. ये है पहले था क्वार्टरली, अब हो गया है ये आपका. हाँ 5 करोड़ के ऊपर का है तो बड़े है आप, तो 2 बार करना होगा आपका, हाफ ईयरली मतलब 25 अप्रैल 25 अक्टूबर. और छोटे आप 5 करोड़ के नीचे है तो वन टाइम 25 अप्रैल करना होगा. तो ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा एग्जाम सप्लाई पे रिवर्सल होता है इनपुट का, पता है अपने को? एग्जाम सप्लाई, अब ये नोटिस है, ये देखिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स बिका है कितना का? 4 करोड़ 13 लाख 1,000 ऐसे करके 4 करोड़ का ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या है? MEIS, SEIS एक्सेट्रा. एग्जाम सप्लाई है ना सर, एग्जाम सप्लाई है. उसके ऊपर में रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? अच्छा एग्जाम सप्लाई पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बताइए. एग्जाम सप्लाई पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद हो गया. एग्जाम थे कि नील रहे थे? नहीं इसके वजह से हुआ है. आपने इधर उधर किया लैपटॉप. Did you remove the laptop? ना थोड़ा सा मूव किया होगा. थोड़ा सा किया, ठीक है. हाँ. याद करिए 2023 में चालू हो गया, वो बंद ठीक है, हो गया, आप- वो हट गया. एक्सप्लेन कर दीजिए. इसमें यहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं. एक बार उनको बुला लीजिए ना. यहाँ पे कुछ किया नहीं सर. ना मैं कुछ वहाँ नहीं कुछ नहीं किया. किया, इन्होंने कुछ नहीं किया. चलते चलते बंद हो गया. ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए. तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स में सर क्या है कहानी? आपका एग्जाम सप्लाई पे अपना होता है क्या नहीं होता है रिवर्सल? मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपए का सेल कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई है 20 रुपया, तो 20% है अपना एग्जाम सप्लाई. कॉमन क्रेडिट क्या होता है? कॉमन क्रेडिट मतलब कि 100 रुपया का जो मैंने सेल किया है, मेरे को पता है कि भाई 80 रुपया तो प्रॉपर टैक्सेबल सप्लाई के लिए मैं खरीदा हूं, तो वो कॉमन क्रेडिट में नहीं आ सकता, वो हट गया. कॉमन क्रेडिट क्या होता है? जो एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज किए हैं और टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जैसे कि रेंटल है मेरा, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, तो वो आपका कॉमन क्रेडिट हो जाता है. कॉमन क्रेडिट पे बोलते हैं कि आप एग्जाम सप्लाई 20% है तो आप कॉमन क्रेडिट पे 20% इनपुट रिवर्सल करिए. सेम रेट है क्या? तो आपको इनपुट रिवर्सल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेकिन ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स और आपका दूसरा कौन सा एक केस है, आपका कोई भी आपका इंटरेस्ट है विच यू आर अर्निंग ऑन FDs, इंटरेस्ट डिस्काउंट विच यू आर अर्निंग ऑन एनी लोन एंड एडवांसेस, वो पर्टिकुलर केस में क्या होता है? वो पर्टिकुलर केस में ये दोनों केस एग्जाम सप्लाईज मानते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर रूल 43, इसके लिए आपका एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं होता है. सो यू डोंट नीड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट. 10 करोड़ का भी आपका ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स और हो 10 करोड़ का, ये देखिए ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कितना है? 4 करोड़ का है. सब जोड़ दिया यहाँ पर, सब जोड़ दिया. 5 करोड़ का ये जोड़ दिया है, यहाँ पर ये जोड़ दिया आपका ये. उसके बाद में बोला क्या गया है कि सर ये देखिए प्रोपोर्शनेट ITC फाउंड रिवर्सल इन प्रोपोर्शनेट टू एग्जाम सप्लाई. 28 लाख रुपया, इतना रुपया किसके ऊपर? ये पूरा जोड़ लिया आपका, ये पूरा. इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन FD एग्जाम सप्लाई है क्या नहीं है? अरे एग्जाम सप्लाई है. एंट्री नंबर 27A ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017, सेंट्रल टैक्स रेट 28 जून 2017. एग्जाम सप्लाई है, लेकिन उसको एक्सेप्शन दिया गया है कि आपका रिवर्सल के लिए रूल 43-42 में ये कैलकुलेट नहीं होगा. वैसे ही ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स एक दूसरा यूनिक केस है जो एग्जाम सप्लाई तो है लेकिन इनपुट रिवर्सल के लिए काउंट नहीं होगा. तो ये 2 पर्टिकुलर केस के लिए मेरे को राहत मिलेगा. तो ये सब बेकार है, 28 लाख सब जीरो हो जाएगा. ये सब जोड़ करके रिवर्सल किया है ना. अच्छा ये दूसरा, ये दोनों केस देखिए, ये वाला इंटरेस्ट के लिए. अच्छा ये नेक्स्ट वाला, ये वाला जो मैंने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स और ये सब जो मेंशन किया है. अच्छा ये वाला देखिए, म्यूचुअल फंड. मैं धंधा भी करता हूं, माल भी बेचता हूं और म्यूचुअल फंड भी बेचता हूं, सिक्योरिटीज खरीदता हूं बेचता हूं. तो सिक्योरिटीज खरीदता बेचता हूं सेफ फाइल से. GST एप्लीकेबल है नहीं है? एग्जाम सप्लाई है क्या है बताइए?
एग्जाम सप्लाई है, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटीज गुड्स है क्या सर्विस है? सर दोनों ही नहीं है, लेकिन दोनों नहीं है तभी भी वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई डिपार्टमेंट मानता है उसको। और जैसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई आ जाता है वो बोलता है कि सर ये आपका टोटल सेल कितना हुआ, ये नोटिस है, ये ऊपर इनपुट कितना हुआ आपका 6,47,0,085। उसके बाद में ये बोलता है स्पेसिफिक टू टैक्सेबल सप्लाई, जो कॉमन क्रेडिट में आएगा नहीं उसको हम बख्श दिए, छोड़ दिए, वो आपका कितना है 64,15,000 ऐसे करके। तो 54,000 का कॉमन क्रेडिट है, जहां पर एग्जाम सप्लाई भी यूज होता है, टैक्सेबल सप्लाई भी होता है। तो उसके ऊपर में रूल क्या बोलता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, रूल 42, रूल 43 एक्सप्लेनेशन 1, उसमें बोलता है कि जितना आपका एग्जाम सप्लाई है उसका 1% आप ले लीजिए। एग्जाम सप्लाई कितना है 62,10,39,000 का 1% कितना हुआ 62,10,000। ये मेरा वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई है, डिवाइडेड बाय टोटल मेरा कितना टर्नओवर है 55 करोड़। तो कितना हो गया 62 लाख डिवाइड बाय 55 करोड़ कितना हो गया 1% 2% हुआ। और कॉमन क्रेडिट कितना हो 55,000, उसको मल्टीप्लाई किया तो ये बोलता है कि इतना प्रतिशत प्रोपोर्शनेटली आप यूज किए हो खरीदा बेची में म्यूचुअल फंड के लिए, जो आपको रिवर्स करना है। ये आपको पता था, ये ऑडिट में निकलता है। म्यूचुअल फंड, एग्जाम, नॉन टैक्सेबल, ये सब किसको पता है? ये सब नोटिसेस है, मैं बनाया नहीं, ये सब नोटिसेस है। ये 2A 3B सर का एक क्वेश्चन था, सर आरसीएम को गलत हेड में पेमेंट कर दिया मैं। ये कैसे 60,000 आईजीएसटी में पेमेंट करना था, 2B में 60,000 मेरा आ रहा है आरसीएम का, पेमेंट कर दिया मैं 25,000 सीजीएसटी एसजीएसटी में, 3 साल निकल गया। आज ऑडिट होता है, वो तो गया 60,000 और दीजिए, इनपुट भी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपने, सर इसमें तो लॉ में राहत दिया हुआ है, लॉ में राहत दिया हुआ है, सेक्शन 77 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 19 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये देखिए, ये वाला नोटिफिकेशन 35 रिफंड के लिए, ये क्या बोलता है 60,000 रुपया आज पेमेंट करिए और 30,000 रुपया जो गलत पेमेंट किए थे 4 साल पहले, भूल जाइए उसको। आज के दिन से 2 साल काउंट होगा रिफंड एप्लीकेशन के लिए, जो 30,000 रुपया आपको मिलेगा। 30,000 मिल गया, 60,000 आप पेमेंट कर दिए, कहानी खत्म। ये एक बेनिफिट दिया गया है। ये बेनिफिट किसके तहत दिया हुआ है, आरसीएम भी इंक्लूडेड है इसमें। बहुत कम जन लोगों को पता है कि आरसीएम में भी अगर हो जाए तभी भी वो इंक्लूडेड है। ये आपका नोटिफिकेशन 35/2021 है। अच्छा, सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाए, काफी बार ऐसा होता है आईजीएसटी का इंपुट था, भूल से सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम कर लिए, क्या होएगा सर, बहुत मार पड़ेगी नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन सर छूटना चाहिए, क्यों छूटना चाहिए, ये देखिए ना सर, ये तो रीजन है, ये मेरा अपील्स का रीजन है। क्या रीजन है सर, सबको पता है ना, आईजीएसटी क्रेडिट सब यूनिवर्सल है। अगर आईजीएसटी क्रेडिट ही आईजीएसटी में क्लेम करता तो आईजीएसटी के साथ भी सेटअप हो जाता, सीजीएसटी के साथ भी सेटअप हो जाता, एसजीएसटी के साथ भी सेटअप हो जाता। तो सीजीएसटी एसजीएसटी जब मैं क्लेम किया हूं, आईजीएसटी नहीं किया हूं, तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो सीजीएसटी एसजीएसटी लाइबिलिटी के साथ ही तो कर रहा हूं। जो अगर आईजीएसटी अगर क्रेडिट क्लेम करता तो वो भी सेटअप वैसे ही होता, तो रेवेन्यू न्यूट्रल है। सेक्शन 49A और रूल 88A जो आपका मैनर है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेटलमेंट ऑफ फंड्स, सेक्शन 53C गवर्नमेंट का प्रॉब्लम। गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि आप जो इनपुट क्लेम करेंगे, एसजीएसटी अगर आप इनपुट क्लेम करके आप अगर आप आईजीएसटी अगर आप ये पेमेंट करते हो क्या, जो भी चीज है, तो एसजीएसटी जो बंगाल का रेवेन्यू है उसको आप खा रहे हो, और आईजीएसटी में, और मानिए आईजीएसटी में आपका हाँ मतलब सेंटर का भी रेवेन्यू है, स्टेट का भी रेवेन्यू है। तो जितना एसजीएसटी आपने सेट ऑफ किया है उतना खाता से जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, आईजीएसटी खाता से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में उतना पैसा आना चाहिए, जो होता है एवरीडे, सेटलमेंट ऑफ फंड्स बोलते हैं इसको। ये डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, मतलब ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है। तो उसमें तो मार खा गए मैं। आईजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लिया, तो एसजीएसटी का जितना मैं सेट ऑफ किया हो वो तो लॉस हो गया मेरा बंगाल गवर्नमेंट के लिए। तो स्टेट डिपार्टमेंट बिलिया घाटा तो कभी छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ता है वो, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ये सब डाल करके अपील करके आप जीत सकते हो, क्या रिट फाइल करके आप जीत सकते हो, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा। कितने आदमी लोग को ये पता है कि मेरा जीएसटी ऑडिट चल रहा है, सर जीएसटी ऑडिट चल रहा है, मैंडेटरी है क्या इनपुट ये टैक्स पेमेंट करना अपने को। मानिए कि ये सब जो आपने डिस्कस किए, 1-2 पॉइंट कोई जेन्युइन निकल जाता है, जितना भी पॉइंट है सबका तोड़ में दिखाया, 1-2 जेन्युइन पॉइंट निकल जाता है, 1-2 लाख रुपया पेमेंट करना अपने को। वॉलंटरी है कि बाय फोर्स है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी पेमेंट करेंगे तो बाय मैंडेट कैश से करना है कि क्रेडिट से भी कर सकते हैं,
कैश से करना टैक्स का बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ टैक्स का बात कर रहा हूँ। क्रेडिट से भी कर सकते हैं। क्रेडिट से कर सकते हैं लेकिन यूजली कौन कौन कैश बोलते हैं, एक बार हाथ उठाइए प्लीज। गैस का क्वेश्चन नहीं है। कैश मैंडेटरी बोलिए सर, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। कैश का क्वेश्चन मैं नहीं बोलता हूँ, सर नहीं बोलते, लॉ बोलता है। कैश में ये कैश जरूरी नहीं है, पेनल्टी और interest। जरूरी नहीं है। फॉर पेनल्टी एंड फॉर इंटरेस्ट, फॉर लेट फीस उसके लिए कैश है सर। फॉर आरसीएम उसके लिए कैश है, लेकिन आपका कोई भी टैक्स है, आउटपुट टैक्स, उस पे आपका कैश मैंडेटरी नहीं है। कहां पर? ऑडिट लेवल पे, कहां पर? एडजुडिकेशन लेवल पे, इन्वेस्टिगेशन लेवल पे, अपील लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, वॉलंटरी लेवल पे, नो, कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है। आई कैन यूज माई क्रेडिट लेज। सिर्फ एक जगह है, जब 990 फाइल करते हैं तो उस टाइम एक इंस्ट्रक्शन नंबर 9 जो है उनका में, उसमें बोलते हैं कि मैंडेटरी कैश में आप पेमेंट करिए। बहुत जन उसमें भी क्रेडिट में पेमेंट करते हैं। ये देखिए, ये तो 5-6 पाप दिखा दिए एक ही चीज में, एक ही नोटिस में। ऊपर में क्या दिखाई? एक्सेस आईटीसी अवेल्ड, आपका जो मतलब 2A 3B का जो इसका डिफरेंस है। दूसरा है सप्लायर कैंसिल हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली, बहुत परेशानी होगा आपको, तो उसके लिए रिवर्स करिए। B2B, इसमें सब केस लॉज है। वैसे आपका जो सप्लायर है वो कब चढ़ाया है? अप्रैल 2024 का बिल सप्लायर सेल का GSTR1 का फाइल किया है 30 नवंबर के बाद। तो आपका 2A 2B में आएगा क्या? 24-25 में आ ही नहीं सकता। वो कट गया आपका, उतना आपका इनपुट आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सप्लायर इज नॉट फाइल्ड इज 3B, सप्लायर फाइल ही नहीं किया 3B अपना, फिर आप फंस गए। आप फंस गए। टेम्पोरेली रिवर्सल करिए 180 दिन वाला। और कब तक रहा? जैसे सर बोले कि सप्लायर फाइल नहीं किया, मेरे को पता फाइल नहीं किया। आज अप्रैल 2025 है जो चल रहा है अपना, अभी मेरे को पता है सप्लायर का दिवालिया निकल गया है, कोई आशा नहीं है उससे। मैं कब तक होल्ड कर सकता हूं? आज ही रिवर्सल करना दरकार है क्या मेरे को? कब तक होल्ड कर सकता हूं मैं? हाँ, कब तक होल्ड कर सकता हूं मैं? 1 महीने, 2 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। आई डोंट नीड टू रिवर्स अंडर लॉ। बहुत कम जन लोग को पता है। ये है आपका रूल 37A, सेक्शन 41A। अभी अपने देखेंगे इसको। ये क्या बोलता है? अगर कोई भी साल में अपने डिटेक्ट करते हैं आज अप्रैल 25 में कि सप्लायर 3B फाइल नहीं की है, मैं बदमाश होकर के आज क्लेम करूंगा, और अगले साल 26 का 30 सितंबर में जाकर के खड़े होकर के देखूंगा कि सप्लायर अभी भी 3B फाइल किया है कि नहीं किया। जब अगर तब तक भी फाइल नहीं किया है अप्रैल 2025 का 3B, तब जब मैं 30 नवंबर 2026 के अंदर में मैं रिवर्स कर दूंगा विदाउट इंटरेस्ट। मतलब 18 महीने मैं विदाउट इंटरेस्ट गवर्नमेंट का पैसा खा करके मैं बैठा हूं, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है। ये लॉ है। किस केस में हुआ? ये वो केस में हुआ जहां पर सप्लायर 3B फाइल नहीं किया। ये केस है, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, नो है। ये देखिए 2A है, यहाँ पर सप्लायर 3B फाइलिंग स्टेटस नो। ये आपका 2B है। ये 2B में नया टेबल आया, टेबल 5, जहां पर दिखाता है सप्लायर 3B फाइल नहीं की है। तो आपको रिवर्स करना पड़ता है टेम्पोरेरी, लेकिन कब तक रिवर्स करना? अगला 30 नवंबर तक करना, भी नहीं करना है। और करना भी है तो टेम्पोरेरी रिवर्सल 4B2 में करना है। और अगले साल में अगर हाइपोथेटिकली वो जीवित हो जाता है तो आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। 16(4) आपको बंदिश नहीं करता है। जो नई फाइल किया वो पिछले महीने का दिखाता है इसमें। हाँ, 18 करेंट में का रिव्यू ही नहीं होगा। ये करंट का ही है सर। ये 2A डायनामिक है, 2A डायनामिक है। ये तो 2A वही महीना का खोलेंगे ना सर आप? 2A तो भी खोलते हैं। 2A खोलेंगे ये देखने के लिए। 2B में अभी तक शायद ये आया, 2B में आया है, टेबल 5 में आया है। यू राइट, ये देखिए टेबल 5 है 2B का, इसमें आया है। ये नया टेबल आया है 2B में, ये अभी 6 महीने पहले ही निकला। सर इज राइट, इसमें दिखा देता 2B में कि सप्लायर इतना फाइल नहीं किया, इनएलिजिबल है, क्लेम मत करिए। लेकिन मैं बदमाशी से क्लेम करता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता अगले 30 नवंबर तक। तो वो इनएलिजिबल लाइन में नहीं आता है। आता है, सवरी टेबल 5 में होएगा वो। 3B में वो अमाउंट शो नहीं, वो ऑटो पॉपुलेट और इसमें दिखाएंगे हम लोग। वो ऑटो पॉपुलेट नहीं, वो आप रिवर्स करेंगे 4B2 में। 4B2 टेम्परेरी रिवर्सल, और रिक्लेम करेंगे जब आप 3B अगला फाइल कर लिया है तो आप टेबल 4D1 में रिक्लेम करेंगे, 4A5 में हाथ से करेंगे। अच्छा, ये वाला केस देखिए, ये बहुत अच्छा। आइस गेट में मेरे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस नहीं दिख रही है। कितने? 26 करोड़, 27 करोड़ के मेरे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आइस गेट में ऑटो पॉपुलेट ही नहीं हुई है। प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे पास में सब शिपिंग बिल्स और सब चीज है, मैं दे दिया तो केस छूट गया। ये आपका क्या है? एक और बैनर ऑफ सेट ऑफ जो अभी डिस्कस की है, ये नोटिस है सर, ये नोटिस है। पहले क्या है? 1 फरवरी 2019 से क्या स्टार्ट हुआ था? IGST पूरा खत्म करिए, फिर उसके बाद में IGST का लाइबिलिटी अगर रहेगा तो CGST इनपुट के साथ सेट ऑफ करिए, फिर SGST के साथ नया मैनर आया था, राइट? वो नया मैनर फॉलो नहीं किए तो आपका
जनवरी 2020 में जाकर के सीजीएसटी के खाता में आप 3,43,000 आपका बच रहा था गलत तरीके से, लेकिन जब डिपार्टमेंट रिकम्प्यूट किया डिपार्टमेंटल ऑडिट में तो 3 लाख ही था, तो 43,000 एक्सेस सीजीएसटी में आपका पड़ा हुआ था, तो आप रिवर्स करिए, ये आपको देखना पड़ेगा। ई-वे बिल के साथ में मैच करिए आपका जो सेल है, ये देखिए ये वही नोटिस है, ई-वे बिल में आपका सेल दिखा रहा है कितना 35,83,000 और यहाँ पर आपने पेमेंट किया 3B में 35,32,000, 51,000 शॉर्टफॉल। इसको रिकॉन्साइल करिए। रिकॉन्साइल तो हो ही सकता है सर, ऊपर में क्या डाला हूं मैं, वे बिल का डेटा, नीचे में 3B का। अरे कितने सारे केसेस है जहां पर सेल होता है वे बिल ही नहीं लगता है, जहां पर वे बिल है वहां पर सेल ही नहीं हुआ। सेल हुआ 1 लाख के नीचे का इंटरेस्ट रेट है, वे बिल लगेगा नहीं लगेगा। 50,000 के नीचे का इंटरेस्ट रेट का लगेगा, लेकिन सेल है। जॉब वर्किंग हुआ है उसके ऊपर में वे बिल यहां पर नहीं लगता, लेकिन ये सब प्लस माइनस करके क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा तब जाकर के छूटेगा। ये सब चीज करना पड़ेगा आपको। ये देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, ये विचित्र केस है सर। ये आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ है, ये बताइए ये इनवॉइस में क्या गलती है, मेरे को कोई बता सकता है? ये एक इनवॉइस है, कर्नाटका में रजिस्टर्ड है आदमी एस्को न्यूमेटिक्स बोल करके, और आईजीएसटी चार्ज किया है। वेस्ट बंगाल में प्लेस ऑफ सप्लाई है, स्टेट कोड 19 दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल दिया है, आईजीएसटी चार्ज किया, एकदम करेक्ट है, इनवॉइस में कोई गलती नहीं है। अगला क्या गलती किया, जीएसटीआर 1 जब फाइल करते टाइम में प्लेस ऑफ सप्लाई में वेस्ट बंगाल नहीं डाल करके कर्नाटका डाल दिया। पूरा मतलब कि एक्सप्लोजन हो गया, मेरा इनपुट इतना पूरा फंस गया, जबकि इनवॉइस में एक गलती नहीं है। 3B पूरा प्रॉपर, अगला आईजीएसटी ही मेरे से चार्ज किया है, आईजीएसटी पेमेंट हुआ है, उसका सेल करेक्ट, मेरा करेक्ट, बुक्स करेक्ट, उसका करेक्ट, इनवॉइस करेक्ट, लेकिन सिर्फ एक प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दिया कर्नाटका जीएसटीआर 1 में। 2B में ही नो कर दिया, 2B में आ गया नो। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है। पीओएस आउटसाइड द स्टेट, फंस गए, क्या करेंगे? अमेंड 30 नवंबर निकल गया, क्या करेंगे सर? रोते रहे। लेकिन इसमें भी केस लॉज है जो मैं मेंशन किया हूं, काफी केस लॉज है। अच्छा, लिक्विडेटेड डैमेजेस, बाहर से एक्सपोर्ट आना था, अमाउंट डेबिटेड टुवर्ड्स कंपनसेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। वो आदमी बोला कि भाई चाइना में बहुत खराब हालत है, हम आपको इंपोर्ट नहीं दे सकते, तो मेरा यहां पर प्रॉब्लम हो गया। तो मेरा क्लॉज में मेंशन था कि लिक्विडेटेड डैमेजेस, कि आप अगर मेरे को माल नहीं दोगे तो इतना अमाउंट का लॉस, पेनल्टी, ये सब है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत मोटा अमाउंट है, $100,000, $1 मिलियन, 10 करोड़, 20 करोड़, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा लिक्विडेटेड डैमेजेस पे? ये तो हर केस में आता है सर, जीएसटी ऑडिट में उठा करके पटक के मारेंगे अपने को। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस में जीएसटी आता है क्या नहीं आता है? ये ऐसा केस में ब्रीच, नॉन परफॉर्मेंस, वो स्पेसिफिक केस में नहीं आता सर, बच सकते हैं अपने। ये पर्टिकुलर सर्कुलर है 178 का, इसमें ये भी दिखाया है, वो भी दिखाया है, बहुत निर्तक दिखाया है इसमें, लेकिन इसमें घुस करके निकालना पड़ेगा अपने को। क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग, ये मेन क्लॉज ये रहता है कि नॉन कम्पीट का नहीं, नॉन कम्पीट का जब बनाते हैं तो हम टॉलरेट कर रहे हैं कि हम कंपटीशन नहीं करेंगे, तो वो एक आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं हुआ, वो एक कंसिडरेशन हुआ। लेकिन आप कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, आपको पता ही नहीं इवेंचुअलिटी है, इट इज नॉट द मेन क्लॉज, इट इज जस्ट अ मियर फ्लो ऑफ मनी, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो ये केस में आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है, ये आपका जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए पूरा इसमें सर्कुलर में मेंशन करके मैं हाईलाइट किया हूं, यहां पर इंजरी, लॉस, देयर इज नो, इट इज जस्ट अ मियर फ्लो ऑफ मनी, तो इतना पैसा आपका बच गया। अच्छा, एम्प्लॉई है, 30 दिन का नोटिस पे देना था, 15 दिन में भाग गया, उससे 30,000 रुपया में मार लिया, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा सर। फर्दर एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर द एम्प्लॉयर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ सच अमाउंट्स। एम्प्लॉय को क्या मिला है? हम पैसा मार लिए एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को कुछ मिला है? कंसिडरेशन है क्या नहीं है? क्या मियर फ्लो ऑफ मनी है? Thus such amounts recovered by employer are not taxable as consideration. Consideration के लिए कुछ रिटर्न होना चाहिए। 5 मिनट्स, बस 5 मिनट्स। चेंज आया होगा। ओके। ऑलराइट, सो ये देखिए इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है आप लोग के पास में, ये अपने शेयर करेंगे, आप इसको आप लोग चेक करिएगा। मतलब 250 स्लाइड्स है, तो जितना ज्ञान दे सकता था, जितना मैं यहाँ पर कोशिश किया हुआ, मेरे हाथ का ही बनाया हुआ स्लाइड्स है। तो ऐसे आप देखोगे कॉर्पोरेट गारंटी है, बहुत मतलब समय और मिलता तो और अपने समझाते एक्सेट्रा एंड ऑल दैट, लेकिन ये सब एक स्लाइड आपका फाइनलाइजेशन में काम आएगा।
एक एक स्लाइड और एक्सपोर्टर रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स आगे मैंने यहाँ पर डाला है। एक पॉइंट मैं डालना चाहता हूँ, इंटरमीडियरी सर्विस लास्ट पॉइंट है। अब इसमें टैक्स प्लानिंग क्या हो सकता है? इंटरमीडियरी सर्विस क्या है सर? मैम जैसे बोली कि आई एम अ कमीशन एजेंट इंडिया में, इनका जो खरीदार है वो भूटान का है, भूटान छोड़ दीजिए यूएस का है, और इनका जो बेचने वाला है वो मानिए म्यांमार का है। बोथ पार्टीज आर आउटसाइड इंडिया, शी इज इन इंडिया। ये केस में अगर मैम बोले क्या इट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तो कितने आदमी लोग बोलेंगे ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि इंटरमीडियरी सर्विस है? इंटरमीडियरी है ये। बिकॉज क्यों है? क्योंकि इंटरमीडियरी का डेफिनेशन में आता है ना, जो यहाँ पर दिया है, फैसिलिटेटिंग, दो पार्टी है, शी इज नॉट डूइंग इट बाय हरसेल्फ, ब्रोकरिंग कर रही है मैम। तो इंटरमीडियरी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? आउटसाइड इंडिया। नो सर, आउटसाइड इंडिया होता तो एक्सपोर्ट हो जाता। तो हर आदमी पानी का बोतल लेकर के बोलता कि कमीशन एजेंट इज एक्सपोर्ट, ऐसे नहीं है। इंटरमीडियरी जैसे घोषित हो गए आप वैसे ही खत्म। आप इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा पॉकेट से। तो अब ये इंटरमीडियरी सर्विस को भी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट वन मोर मिनट। इंटरमीडियरी सर्विस को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी अपना तोड़ है, मैम के लिए तोड़ है कि मैम अगर इंडिया में और दोनों बाहर में हो तो इट इज एग्जेम्प्ट, दिस इंटरमीडियरी सर्विस इज एग्जेम्प्ट एज पर एंट्री 12AA। हाँ नहीं वो नहीं सर, उसमें ये है कि आपका सर ये इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ एग्जामिशन नोटिफिकेशन में ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो कर सकते हैं। तो इंटरमीडियरी सर्विस से भी बच गए, गलत एक्सपोर्ट भी रिपोर्ट नहीं करना अपने को, और एग्जाम सप्लाई करके 0 पैसा अपने को कुछ भी अपने को टैक्स पेमेंट नहीं करना। सो थैंक यू एवरीवन। ये फ्री सप्लाई, ये फ्री सैंपल्स वाला है आपका सर, जो आप बोल रहे थे। फ्री सैंपल्स एक्सपोर्ट नहीं है, फ्री सैंपल एक्सपोर्ट नहीं है। फ्री सैंपल कंसिडरेशन में होता है कि फ्री होता है? फ्री होता है, तो कंसिडरेशन नहीं होता है। नॉर्मल गुड्स से उठा करके जो आप है उसको भेजेंगे, तो नॉर्मल स्टॉक से उठाए है उसको भेज रहे, कोई कंसिडरेशन है क्या? नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है वो केस में। वो नहीं है तो डिलीवरी चलान लगेगा। इट इज नॉट अ सप्लाई। सप्लाई नहीं है तो 0 रेटेड सप्लाई हो नहीं सकता। इंडिया से बाहर भी आप भेजो तो उसमें आपको उल्टा मार पड़ेगा, इनपुट रिवर्सल करना पड़ेगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज H। फ्री सैंपल और कोई भी गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ, उसे सब आपको करना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे थे सर पहले? सर हमारा जो सैंपल है क्या होता है कि कुछ एक सैंपल का पेमेंट आता है, कुछ एक का नहीं आता। जिसका नहीं आता उसका बुक्स में रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, और कस्टमर स्पेसिफिक सैंपल बनाते हैं अपने। एक कस्टमर को जो सैंपल दिए वो दूसरे को हम नहीं देते। तो उस केस में हम सारा डॉक्यूमेंट्स उनको सप्लाई करते हैं, माने बाय एयर भेजते हैं। अब वो ऑफिसर क्या बोलते आप इसका शिपिंग बिल दीजिए। कुरियर कंपनी हमको शिपिंग बिल देती नहीं है क्योंकि वो मास्टर सर पहला तो चीज है, शिपिंग बिल तो सेकंड आता है, ये एक्सपोर्ट ही नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है इसका। अगर आप सैंपल बोल रहे हो तो पैसा कैसे मिल रहा है आपको? तब तो टूलिंग कॉस्ट हो गया, दोनों अलग चीज। पैसा उस केस में मिलता है, पैसा मिल रहा है तो सैंपल नहीं हो सकता है, वो टूलिंग कॉस्ट है। तब टूलिंग कॉस्ट को ऑलरेडी अपने डिस्कस कर लिया, प्लस ये ऑफ द स्टेज ले लेंगे, दूसरा डेलीगेशन भी इनका मीटिंग है। सो ये मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था, लॉट्स मोर टू व्हाटएवर देयर। कोई भी क्वेरी हो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कोई भी इशू नहीं है, व्हाट्सएप, ईमेल एक्सेट्रा। मैं कोशिश किया हूं 250 स्लाइड देने का, और हर स्लाइड में हर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, स्पेसिफिक, जनरल, फ्रॉम द नोटिस डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव। ये चीज अगर हर आदमी कोई देखे समझे इसमें तो बहुत मेहनत मिलेगा आपको, कंसल्टेंट्स भी देखे तो बहुत मेहनत मिलेगा इसमें। सो थैंक यू फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग, एंड कोई भी क्वेरी हो तो ऑफ द अपने स्टेज ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस टुडे। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू वेरी मच तुलसियान जी, इट्स वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा किया है। टाइम थोड़ा शॉर्ट है एक्चुअली, 5 मिनट से मीटिंग टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। एज यू आर मेंबर, सभी मेंबर है, ये मेंबर्स की भी मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू। तो सबका वेलकम है। आज नेक्स्ट मीटिंग चालू करते हैं। एब्सोल्युटली बहुत मेहनत की आपने, रियली इट्स वेरी नाइस। मैंने ऐसा था इनको 1 घंटा टाइम और चाहिए। His sessions are very enlightening and in-depth analysis of each and everything. सारा So section याद है। that's why we were unable to go for the next session. Anyways, we have another